السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عمران سیریز کے ناول سپر پاور کے دوسرے حصے کے ساتھ، جو کہ سسپینس اور فائٹنگ سے بھرپور ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو صفحہ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ وہ تینوں فلیٹ کے الگ الگ ستونوں سے بری طرح سے جکڑے ہوئے تھے۔ ان کے سر ڈھکے ہوئے تھے اور جو معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بے ہوش ہوں۔ ان کے سامنے کرسی پر کراسٹی بڑے اطمینان سے بیٹھی ایک رسالہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ رسالہ دیکھتے ہوئے باری باری ان تینوں کی طرف بھی دیکھ رہی تھی جسے وہ ان کے خود ہوش میں آنے کی منتظر ہو۔ کراسٹی نے بارٹر کے دونوں ساتھیوں کو بے ہوش کر کے پہلے ہی باندھ دیا تھا۔ اسے بارٹر کا انتظار تھا جو اسے اسرائیل لے جانے اور اسرائیل وزیر اعظم سے ملاقات کرانے کا انتظام کرنے گیا تھا۔ پھر پارٹر نے باری باری اپنے دونوں ساتھیوں سے ایک اسپیشل ٹرانسمیٹر پر رابطہ بھی کیا تھا جو ان دونوں کے پاس تھے۔ کراسٹی نے ان دونوں کے ٹرانسمیٹر پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے کارٹر اور سارٹر کی آوازوں میں بارٹر سے بات کی تھی اور اسے اطمینان کرتے ہوئے کہا تھا کہ کراسٹی کی نظروں میں ہے، اور پھر 4 گھنٹوں کے طول انتظار کے بعد بارٹر واپس آ گیا تھا۔ کراسٹی نے جان بوجھ کر فلیٹ دروازہ لاک نہیں کیا تھا۔ بارٹر نے کال کر کے اسے اپنی آمد کے بارے میں بتا دیا تھا۔ کراسٹی نے اس کے استقبال کی تیاری کر رکھی تھی۔ دروازے کی آڑ میں کھڑی ہو گئی تھی اور اس کے ہاتھوں میں ایک بھاری ڈنڈا تھا۔ وہ بارٹر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو کراسٹی نے اس کے سر پر اس قدر زور سے ڈنڈا مارا کہ بارٹر چیختا ہوا گرا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، کراسٹی نے اس کے سر پر ڈنڈے کی ایک اور بھرمار بوچھار زور سے کر دی تھی جس سے بارٹر وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا۔ کراسٹی نے ڈنڈا پھینک کے کمرے کے دروازے کو لاک کیا تھا اور پھر بارٹر کے بازو پکڑ کر اسے گھسیٹ کر کمرے کے وسط میں لے گئی، اور پھر اس نے کمرے میں موجود تیسرے ستون کے اسے جکڑ دیا تھا اور وہ اطمینان سے ان کے سامنے کرسی ڈال کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے پاس چونکہ ان تینوں کو ہوش میں لانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس لیے وہ ان کے خود بخود ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر 1 گھنٹے کے مزید انتظار کے بعد سب سے پہلے بارٹر کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی تھی۔ کراسٹی نے چونکہ اس کے سر پر ڈنڈے مارے تھے، اس سے دوسرے ساتھیوں سے پہلے اسے ہوش آ گیا تھا، جبکہ اس کے ساتھیوں کو کراسٹی نے جس گیس سے بے ہوش کیا تھا اس کا ابھی مزید کئی گھنٹوں تک ہوش میں آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ بارٹر نے آنکھیں کھولی تو چند لمحوں وہ کراتا رہا، پھر جیسے ہی اس کا شور پیدا ہوا تو وہ بری طرح سے چونک پڑا۔ اوہ یہ کیا! اس نے خود کو اور اپنے ساتھیوں کو اس طرح بندھا ہوا دیکھ کر بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ وہی جو تم دیکھ رہے ہو، کراسٹی نے کہا، اور رسالہ سائڈ کی ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کراسٹی تم؟ بارٹر نے کراسٹی کی طرف دیکھ کر غصیلے لہجے میں کہنا چاہا، مگر پھر سر کی چوٹ نے اسے بے اختیار کرانے پر مجبور کر دیا۔ تم اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کرانے کا انتظام کرنے گئے تھے، اس کا کیا ہوا؟ کراسٹی نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ انہوں نے تم سے ملنے سے انکار کر دیا ہے، بارٹر نے کہا۔ کیوں؟ کراسٹی نے پوچھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہارے بھائی سی کوک اور اس کے سارے سیٹ اپ کو ختم کر دیں گے۔ اس سے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہماری بات مان جاؤ، بارٹر نے کہا۔ یہ جانے بغیر ہی تمہاری بات مان جاؤ کہ میرا بھائی تمہارے قبضے میں ہے بھی یا نہیں، کراسٹی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ ہمارے قبضے میں ہی ہے کراسٹی، تمہاری اس سے بات کرائی جا سکتی ہے، بارٹر نے کہا۔ تو کراؤ بات، کراسٹی نے کہا۔ مجھے کھولو، میں اپنے اسپیشل ٹرانسمیٹر پر تمہاری بات کراتا ہوں، بارٹر نے کہا تو کراسٹی نے اس کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ بارٹر نے چونک کر کہا۔ کراسٹی اس کے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک جدید ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ یہی ہے تمہارا اسپیشل ٹرانسمیٹر؟ کراسٹی نے کہا۔ ہاں، بارٹر نے سر جھٹک کر کہا۔ فریکوینسی بتاؤ، میں تمہاری بات کراتی ہوں تمہارے ساتھی سے، کراسٹی نے کہا۔ نہیں، فریکوینسی میں خود ملاؤں گا، تم مجھے کھولو، بارٹر نے کہا۔ بارٹر، تم اور تمہارے ساتھی میرے رحم و کرم پر ہیں، یہاں تمہارا بھیانک حشر بھی کروں گی تو کسی کو خبر تک نہیں ہوگی۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ جو میں کہتی ہوں وہ کرتے جاؤ، کراسٹی نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کراسٹی، تم بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال رہی ہو، اس کا انجام جانتی ہو نا، بارٹر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ انجام کی فکر مجھے نہیں، تمہیں کرنی چاہیے، بارٹر۔ فلیٹ دیواریں دیکھو، میں نے فلیٹ کو مکمل طور پر ساؤنڈ پروف کر دیا ہے، تم اگر حلق پھاڑ پھاڑ کر بھی چیخو گے تو تمہاری چیخیں سن کر کوئی نہیں آئے گا، کراسٹی نے کہا تو بارٹر چونک کر فلیٹ کی دیواروں کو دیکھنے لگا جس پر اب واقعی ربڑ کی موٹی موٹی چادریں چڑھی ہوئی تھیں۔ فلیٹ کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں اور ان پر بھی ربڑ کی چادریں تھیں۔ تو تم مجھ پر اور میرے ساتھی پر تشدد کرو گی، بارٹر نے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ضرورت پڑنے پر میں ایسا بھی کر سکتی ہوں، کراسٹی نے کہا اور دائیں طرف بڑھی اور اس نے کرانس پر پڑا ہوا اپنا پسٹل اٹھا لیا جو اس نے الماری کے نیچے سے نکال کر پہلے ہی وہاں رکھ لیا تھا۔ کارٹر اور سارٹر کی جیبوں سے میں بھی مشین پسٹل نکلے تھے جو اس نے کرانس کے پر ہی رکھ دیے تھے۔ تم کچھ بھی کر لو کراسٹی، ہم تربیت یافتہ ہیں، تم سے کچھ بھی نہیں اگلوا سکو گی تم،
بارٹر نے کہا۔ دیکھتی ہوں تم کس قدر تربیت یافتہ ہو، کراسٹی نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے بارٹر کے پاؤں پر ایک فائر کر دیا۔ زوردار دھماکے کے ساتھ کمرہ بارٹر کے تیز چیخ سے گونج اٹھا۔ کراسٹی نے اس کی پنڈلی میں گولی ماری تھی۔ حیرت ہے، تربیت یافتہ ہو کر چیخ رہے ہو، کراسٹی نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اس کی دوسری پنڈلی پر فائر کر دیا۔ بارٹر حقیقتاً حلق کے بل چیخنے لگا تھا۔ اس کی دونوں پنڈلیوں پر گولیاں گھس کر دوسری طرف نکل گئی تھیں اور اس کی پنڈلیوں سے خون ابل رہا تھا۔ اب ایک ایک گولی مجھے تمہارے دائیں اور بائیں کاندھے پر بھی مارنی چاہیے، کراسٹی نے کہا، اور پھر اس نے واقعی پسٹل کو 2 بار ٹریگر دبایا اور بارٹر کے دونوں کاندھوں میں سوراخ ہوتے چلے گئے۔ بارٹر کا چہرہ تکلیف سے بگڑ گیا تھا۔ تمہارا سر، تمہاری گردن یا پھر تمہارے پیٹ میں نے گولی ماری تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، اس لیے، کراسٹی نے کہا، اور پھر اس نے 2 گولیاں بارٹر کے دونوں رانوں میں ماری تھیں۔ اب تک کمرہ بارٹر کے دل خراش چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ وہ دائیں بائیں بری طرح سے سرما رہا تھا۔ اگر وہ رسے سے نہ بندھا ہوتا تو یقیناً زمین پر ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح تڑپنے لگتا۔ واقعی خاصی تربیت یافتہ ہو، 6 گولیاں ہضم کر چکے ہو، اس کے باوجود سوائے چیخوں کے تمہارے منہ سے کچھ نہیں نکل رہا۔ ٹھہرو، میں پسٹل دوبارہ لوڈ کر لوں، 2-4 گولیاں اور ہضم کر لو تو شاید تمہارا منہ کھل جائے، کراسٹی نے کہا۔ وہ کارنز کی طرف بڑھی اور اس نے پہلا پسٹل رکھ کر دوسرا پسٹل اٹھا لیا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، اس میں گولیاں بھی زیادہ ہیں اور اس کے ٹریگر کو بار بار مجھے دبانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ایک بار ٹریگر دبانے سے ہی اسے گولیوں کی 2 بوچھار ہو جائے گی تو تمہارے جسم کے چھترے اڑتے چلے جائیں گے، کراسٹی نے مشین پسٹل بارٹر کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز اس قدر بے رحمانہ تھا کہ بارٹر پوری جان سے لرز اٹھا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جو بظاہر معصوم نظر آ رہی تھی، مگر وہ جس صفاقی سے بارٹر پر گولیاں برسا رہی تھی، اس سے صرف یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ کس قدر سخت دل ہے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ بارٹر نے کراتے ہوئے کہا۔ پہلے تم مجھے اس ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی بتاؤ، پھر میں بتاؤں گی کہ میں کیا چاہتی ہوں، کراسٹی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں فریکوینسی بتا دیتا ہوں، بارٹر نے کہا، اور اسے ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی بتا دی۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات، اب میں فریکوینسی ایڈجسٹ کرتی ہوں، تم اپنے ساتھیوں سے بات کرو، انہیں حکم دو کہ وہ سی کاک کو چھوڑ دے، جس طرح وہ سی کاک کو لے کر اسرائیل گئے تھے اس طرح وہ اسے لے کر کرائمیا آ جائے، اور انہیں مزید حکم دو کہ وہ سی کاک کے تمام اڈوں سے اپنا ہولڈ ختم کر لیں، کراسٹی نے کہا تہمکانہ لہجے میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا، بارٹر نے خوف سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کراسٹی نے چونکتے ہوئے کہا۔ یہ سارا سیٹ اپ پرائم منسٹر کے حکم سے کیا گیا ہے، اس سیٹ اپ کو پرائم منسٹر کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا، بارٹر نے کہا۔ سیٹ اپ؟ کیسا سیٹ اپ؟ کراسٹی نے چونک کر کہا تو بارٹر کے چہرے کا ایک لمحے کے لیے رنگ اڑ گیا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا تھا۔ سیکا کو قبضے میں لینے، اس کے اڈوں کو ہولڈ اور تمہیں اس بات کے لیے مجبور کرنے کا سیٹ اپ کہ تم ساک لینڈ جا کر ہمارے ساتھ لیے سپر پاور حاصل کر سکو، بارٹر نے کہا تو کراسٹی غور سے دیکھنے لگی۔ اس نے صاف محسوس کر لیا تھا کہ بارٹر نے فوراً بات بدلنے کی کوشش کی ہے۔ بارٹر، سچ بتاؤ، کیا اسرائیل واقعی سپر پاور کے حصول کی خواہش مند ہے؟ کراسٹی نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیوں؟ بارٹر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم اس قدر احمق معلوم نہیں ہوتے جتنا بن رہے ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم نے مجھے جو نئی کہانی سنائی ہے میں اس پر یقین کر لوں گی؟ کراسٹی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ بارٹر نے چونک کر کہا۔ اس کا رنگ یکلک متغیر ہو گیا تھا۔ تم نے مجھے سلور پاور کی جو کہانی سنائی تھی اس میں کئی جھول تھے۔ تم نے کہا تھا کہ تمہارا ایجنٹ جن سلور پاور سٹونز کے لے کر نکلا تھا وہ انہیں لے کر اسرائیل آ رہا تھا اور اس نے طیارہ چارٹرڈ کرا رکھا تھا۔ طیارہ چارٹرڈ کو بالمخصوص عام روٹ سے ہٹ کر اور ڈائریکٹ کسی ملک میں جانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، مگر اس کے روٹ میں اتنا فرق نہیں ہوتا کہ اسے اڑایا نارتھ کے لیے جائے اور وہ ایسٹ کی طرف پرواز کر جائے۔ تم نے کہا تھا کہ طیارہ چارٹرڈ سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا ہے، جبکہ اسرائیل اور اوٹان مخالف سمتوں میں ہیں۔ پھر تم نے کہا کہ سلور پاور تباہ شدہ جہاز کے ملبے کے لیے اوٹان کے ہاتھ لگ گیا ہے، انہوں نے اس ڈائری کو بھی تلاش کر لیا تھا جس میں تمہارے ملک کے ایجنٹ نے سلور پاور کی تمام حقیقت اور اس کے حصول کا طریقہ تحریر کر رکھا تھا۔ ایجنٹ سلور پاور کے اہمیت کے بارے میں تو لکھ سکتا ہے، اس ڈائری میں اس کے حصول کا مقصد لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال تم نے کہا کہ اوٹانی حکمران نے سلور پاور اپنے قبضے میں لے کر بلغاریہ اور پاکستان سے باقاعدہ سودے بازی شروع کر دی ہے۔ اوٹان ایک مسلم ملک ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اس اسلامی ملک میں اسرائیل کے ایجنٹ موجود نہ ہوں؟ تمہارے کہنے کے مطابق سلور پاور جس بریف کیس میں رکھنے گئے تھے ان کو ان بریف کیس سے کچھ نہیں ملا گیا تھا، اور اس خاص بریف کیس کی وجہ سے سلور سٹون سلور اسرائیل کے نظروں میں تھے۔ پھر انہیں میرے ساتھ اور میرے بھائی کے لیے اس قدر عجیب و غریب سیٹ اپ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تم لوگوں کے پاس میرے وہ فوٹوگرافز بھی موجود ہیں جن میں پاکستان سیکرٹ سروس کے ممبران کے ساتھ تھی۔ تمہارا کہنا ہے کہ تم مجھ پر شروع سے نظر رکھے ہوئے ہو، کیونکہ تم یہ سب پہلے سے ہی جانتے تھے کہ یہ سب کچھ ہوگا، اور تم میرے بھائی کے گرد اپنا شکنجہ تنگ کر کے مجھے ساک لینڈ جانے کے لیے مجبور کر دو گے کہ میں ہی وہاں سے تمہارے لیے سلور پاور حاصل کروں، کراسٹی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ بارٹر نے اسے قوی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تم بتاؤ گے، تم نہیں تو تمہارے ساتھی بتائیں گے، میں انہیں مجبور کر دوں گی کہ وہ اصل حقیقت بتائیں، کراسٹی نے غراتے ہوئے کہا۔ تم غلط سوچ رہے ہو کراسٹی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ہم ساک لینڈ جا کر کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے۔
اگر ہم نے وہاں کارروائی کی تو نہ صرف وہاں ہم اوپن ہو جائیں گے بلکہ دوسرے سپر پاورز کو بھی سلور پاورز کا پتہ چل جائے گا اور پھر ساری دنیا کی جنگ سے سلور پاور کے حصول کے لیے نکل کھڑی ہوں گے۔ اسرائیل سلور پاور کو ایک ریمیک کی نظروں سے بھی بچانا چاہتا ہے، بورٹر نے کہا۔ میں نہیں مانتی، کراس چین سر جھٹک کر کہا۔ نہ مانو، بورٹر نے کہا، تو تم نہیں بتاؤ گے، کراس چین لگاتے ہوئے کہا۔ جبکہ ایسی بات ہے ہی نہیں تو کیا بتاؤں، بورٹر نے کہا۔ اسرائیل پاک ایشیا کے خلاف جو سازش کر رہا ہے اس کے بارے میں تم کیا جانتی ہو، کراس چین نے کہا۔ تو اس بار بورٹر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کراس چین کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے تاثرات صاف دیکھ لیے تھے۔ کیسی سازش ہے، تم کیا کہہ رہی ہو، بورٹر نے منہ بنا کر کہا۔ اس لمحے سورٹر نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ سب کا بندھا ہوا دیکھ کر وہ بری طرح چونک پڑا۔ باس، اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بورٹر اور کراس چین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس لمحے کارٹر کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ اس کی حالت بھی سورٹر سے مختلف نہ تھی، البتہ باس اور خود کو بندے دیکھ کر وہ کراس چین کو باس کے سامنے مشین پسٹل لیے کھڑی دیکھ کر اس کے چہرے پر غصہ آ گیا تھا۔ باس کو شدید زخمی حالت میں دیکھ کر اس کی آنکھیں شعلے اگلنے لگی تھیں۔ وہ اپنے جسم کو زور زور سے جھٹک دینے لگا تھا جیسے ہی وہ اپنی طاقت سے رسیں توڑ دے گا۔ یہ دیکھ کر کراس چین پیچھے ہٹی اور اس نے مشین پسٹل کا رخ اس کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ تھرتھراہٹ کی آواز کے ساتھ مشین پسٹل سے بے شمار گولیاں نکلیں اور کارٹر کا جسم شہد کی مکھیوں کا چھتا بنتا چلا گیا۔ اس کے رگ سے نکلنے والی چیخیں بے حد دردناک تھیں۔ اس کے جسم کو زوردار جھٹکے لگے اور پھر اس کا سر ڈھلکتا چلا گیا۔ یہ تم نے کیا کیا، تم نے کارٹر کو ہلاک کر دیا، اوہ ریئلی ویری بیڈ، بورٹر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ سورٹر پٹی پٹی آنکھوں سے کراس چین کو دیکھ رہا تھا۔ کراس چین نے مشین پسٹل کا رخ سورٹر کی طرف کیا تو اس کا رنگ فاق ہو گیا۔ نہیں، مجھے مت مارنا، میں سورٹر نے بری طرح سے ہکلاتے ہوئے کہا، مگر کراس چین نے اس پر بھی فائرنگ کر دی۔ سورٹر بھی کارٹر کی طرح چیختا ہوا ہلاک ہو گیا تو بورٹر کے رہے سہے اوسان بھی ختم ہو گیا۔ وہ کراس چین کی طرف یوں دیکھ رہا تھا جسے کراس چین موت کا روپ دھار رہی ہو۔ یہ تم کیا کر رہی ہو، تم نے میرے ساتھیوں کو کیوں ہلاک کیا، بورٹر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ مجھے ان کی شکلیں پسند نہیں تھیں، اس سے میں نے ان کو ہلاک کر دیا، کراس چین نے کہا۔ تم بے حد شفاق ہو، بے رحم اور ظالم ہو کراس چین، میں تمہارے اس بھیانک روم سے واقف نہ تھا، ورنہ، بورٹر نے غراتے ہوئے کہا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود اس کا لہجہ ابھی تک نہ بدلا تھا، حالانکہ زخموں سے خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کا رنگ زرد سے زرد ہوتا جا رہا تھا، جس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس قدر قوی ارادی کا مالک ہے۔ اب تم نے میرا بھیانک روپ دیکھا ہے، کہاں ہے بورٹر، تم نے میرا بھیانک روپ دیکھ لیا تو تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی، کراس چین نے فاقے سے کہا۔ تم بورٹر نے اکلاتے ہوئے کہا۔ اب بولو، کیا کہتے ہو، مجھے تم پاکیزہ کے خلاف ہونے والی سازش کے بارے میں کچھ بتا رہے ہو یا نہیں، کراس چین نے کہا۔ تم بلا وجہ اپنا وقت برباد کر رہی ہو کراس چین، ایسا کچھ نہیں ہے، بورٹر نے سر جھٹک کر کہا۔ اوکے، حقیقت جاننے کے لیے میرے پاس ایک اور راستہ بھی ہے، کراس چین نے کہا تو بورٹر بری طرح سے چونک پڑا۔ کیا مطلب، اس نے چونک کر کہا۔ ابھی بتاتی ہوں، پہلے تمہارا منہ تو بند کر لوں، کراس چین نے کہا اور اس نے مشین پسٹل اپنی بیلٹ میں آڑسا اور پھر مڑ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک پٹی اور پٹی کا بندھا ہوا ایک گولا تھا، شاید وہ دوسرے کمرے سے کوئی چادر پھاڑ کر لائی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو، بورٹر نے چیختے ہوئے کہا۔ منہ کھولو، کراس چین کے سامنے آ کر کہا تو بورٹر نے بجائے منہ کھولنے کے اور سختی سے منہ بند کر لیا۔ یہ دیکھ کر کراس چین کے منہ پر اس زور سے مکہ مارا کہ اس کا منہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ بورٹر کا منہ بند ہوتا، اس نے بورٹر کے منہ میں کپڑے کا گولا ٹھونس دیا تھا جس کے منہ اور سر کے گرد پٹی لپیٹ دی تھی۔ اب ٹھیک ہے، کراس چین دونوں ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا اور اسے جیب سے بورٹر کا ٹرانسمیٹر نکالے۔ اس سے پہلے کہ وہ بورٹر کی بتائی فریکوینسی ملاتی، اچانک ٹرانسمیٹر جاگ پڑا اور اس سے مترتم سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ اسکرین پر PMI کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ پرائم منسٹر آف اسرائیل گڈ، کراس چین نے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا۔ اس نے فوراً ایک بٹن پریس کر کے ٹرانسمیٹر آن کر کے کان سے لگا لیا۔ ہیلو ہیلو PM کالنگ، دوسری طرف سے اسرائیل پرائم منسٹر کی مخصوص آواز سنائی دی۔ یہ چونکہ جدید موبائل فون کی طرز کا ٹرانسمیٹر تھا، اس لیے اس میں بار بار اوکے اوور کہنا نہ پڑتا تھا۔ یس بورٹر اٹینڈنگ یو، کراس چین نے بورٹر کے لہجے میں کہا۔ اس کے منہ سے اپنی آواز سن کر بورٹر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ ایک لڑکی اس طرح مردانہ آواز نکال سکتی تھی، وہ بھی اس کے لب و لہجے میں، یہ واقعی اس کے لیے حیرت انگیز تھی۔ بورٹر، تم نے کراس چین کے بارے میں ابھی تک رپورٹ کیوں نہیں دی، دوسری طرف سے پرائم منسٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ کراس چین کو میں نے ٹریس کر لیا ہے سر، کراس چین نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ گڈ، کہاں ہے وہ، پرائم منسٹر نے کراس چین کے بورٹر سمجھ کر کھول کر بات کرتے ہوئے کہا۔ وہ میری نظروں میں ہے سر، کراس چین نے کہا۔ گڈ، کراس چین کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر دو تاکہ وہ اوہ ایک منٹ، دوسری طرف سے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ کیا ہوا سر، کراس چین چونک کر بورٹر کے لہجے میں کہا، مگر دوسری طرف سے اسے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ پھر اچانک کراس چین کی ایسی آواز سنائی دی جیسے وہ دوسری طرف گھون گھون کی آواز کے ساتھ کوئی مشین چل پڑی ہو۔ ہیلو ہیلو کرنل بارٹر، کیا تم لائن پر ہو، دوسری طرف سے پرائم منسٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، میں آن لائن ہوں، کراس چین نے کہا۔ اوہ کمپیوٹر مشین اس آواز کو اوکے نہیں کر رہی، آواز کرنل بارٹر کی نہیں ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو کراس چین یکلک اچھل پڑی۔ کون ہو تم، جلدی بتاؤ، کرنل بارٹر کہاں ہے، دوسری طرف سے اسرائیل پرائم منسٹر نے چیختے ہوئے کہا تو کراس چین ٹرانسمیٹر کو فوراً کان سے ہٹا لیا اور اس کا بٹن پریس کر کے اسے آف کر دیا۔
تو انہوں نے میری آواز کو کمپیوٹر مشین سے چیک کر لیا ہے، کراسٹی نے حلق کے بل گڑاتے ہوئے کہا۔ اچانک ٹرانسمیٹر سے ایک بار پھر سٹی کی مترتم آواز نکلی تو کراسٹی نے چونک کر دیکھا تو اسکرین پر ایک سرخ رنگ کا نقطہ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نقطے کو دیکھ کر کراسٹی نے بے اختیار اور بوکھلا کر ٹرانسمیٹر دور پھینک دیا۔ جیسے ٹرانسمیٹر فرش سے ٹکرایا، یکلک ایک ہولناک دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ کراسٹی اچھل کر دور جا گری۔ ساتھ ہی تیز گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ فلیٹ کی چھت اور اس کی دیواریں کراسٹی کو اپنے جسم پر گرتی ہوئی محسوس ہوئیں اور پھر اس کے طریقے ہوتا چلا گیا، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ عمران اپنی ٹیم کے ساتھ افراد کے ساتھ ساکلینڈ کے دارالحکومت کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں موجود تھا۔ وہ سب مختلف فلائٹوں اور مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے ساکلینڈ پہنچے تھے اور پھر وہ اس ہوٹل میں ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ عمران نے ان سب کو کے RS پلاسٹک سرجری ٹائپ کے میک اپ میں رہنے کی ہدایت دی تھی تاکہ ان کا میک اپ کسی کیمیکل یا جدید سے جدید میک اپ واشر سے واش نہ ہو سکے، انہیں کسی جدید کیمرے سے ان کا اصلی چہرہ کسی کے سامنے آ سکے۔ ٹیم عمران میں جولیا، سالیہ، صفدر، تنویر، کیپٹن شکیل اور جوزف اور جوانا شامل تھے۔ سر سلطان نے عمران کو آفس بلا کر اسے سلور پاور کے بارے میں تفصیلات بتائی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اوٹان حکومت نے سونے کے ایک بہت بڑے ذخیرے کے بدلے میں سلور پاور دینے کا وعدہ کیا۔ ایسا ہی وعدہ انہوں نے بلغاری حکومت سے بھی کر لیا تھا۔ سر سلطان نے سلور پاور کی حقیقت عمران کو بتاتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے کہ اوٹان حکومت بلغاریہ یا پاکیزا میں سے کسی ایک ملک کو سلور پاور دینے کا اعلان کرتی، اس کی خفیہ سرنگ سے سلور پاور کو اڑا لیا گیا اور اس کے لیے غیر ملکی ایجنٹوں اوٹانی وزارت خارجہ کے سیکریٹری کو اپنے قبضے میں کر کے اس پر شدید تشدد کر کے اسے سلور پاور اور اس کی خفیہ سرنگ کے بارے میں معلومات حاصل کی اور پھر انہوں نے سرنگ کو بموں سے اڑا دیا اور وہاں سے سلور پاور نکال کر لے گئے۔ اوٹانی حکومت سلور پاور اور ان مجرموں کا سراغ لگانے کی ممکن کوشش کر رہی ہے، لیکن ان کی کوششیں ناکام رہی ہیں۔ انہوں نے بلغاریہ اور پاکیزا سے معاذرت کر لی ہے، لیکن چونکہ سلور پاور پر دونوں ممالک کا حق ہے، اس لیے کوئی دوسرا ممالک اسے نہیں حاصل کر سکتا۔ صدر مملکت نے بالخصوص سر سلطان کو فون کے ایکسٹرا کو پیغام یہ دیا تھا کہ وہ اوٹان جا کر تحقیقات کرائے اور معلوم کرے کہ آیا واقعی اوٹان سے سلور پاور اڑائے گئے ہیں۔ اوٹانی حکومت نے اس کے لیے کسی سپر پاور سے خفیہ معاہدہ کر لیا ہے، اور اگر واقعی سلور پاور اوٹان کے پاس ہے یا نہیں ہے یا انہیں دوسرے ممالک کے ایجنٹوں نے اڑا لیا ہے تو ایکسٹرا سلور پاور کا سراغ لگائے اور جیسے ہی ممکن ہو سلور پاور پاکیزا کے حاصل کر کے سلور پاور کو پاکیزا میں آنے کا مطلب تھا کہ پاکیزا سپر پاورز کے صف اول میں شامل ہو جائے۔ سلور پاور کی وجہ سے پاکیزا کی ایٹمی ٹیکنالوجی میں ہزاروں گنا طاقت کا اضافہ ہو سکتا تھا اور پھر دشمن کبھی اس کے سامنے سر اٹھانے کی جرات نہ کر سکتا تھا۔ سلور پاور کی حقیقت عمران سے بھی چھپی ہوئی نہیں تھی، لیکن اسے اس طریقے کار کی حیرت ہو رہی تھی جس طریقے سے سلور پاور اوٹان پہنچا تھا۔ اسے ساری ڈوجنگ گیم معلوم ہو رہی تھی۔ سلور پاور جیسی قیمتی دھات پر اگر اسرائیل کی نظر پڑ چکی تھی اور وہ اس کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا تو یہ ممکن ہی نہ تھا کہ اسرائیل ایجنٹ اسے اوتان سے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرتے، اور پھر سلور پاور کو جس چارٹر طیارے سے اسرائیل لے جایا جا رہا تھا اس کا اوٹان کی طرف آنا اور پھر اسے طیارے کو وہاں گر کر تباہ ہونا بھی عمران کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر عمران نے خود اس سارے معاملات کی تحقیقات کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ وہ ذاتی طور پر اوٹان گیا تھا اور اس نے ہر زاویے اور ہر پہلو سے تحقیقات کی۔ خاص طور پر اس نے تباہ شدہ طیارے کے ملبے کا جائزہ لیا اور اس طرح سے نکلنے والے بلیک باکس کو رپورٹس بھی حاصل کی، جس سے معلوم ہوا کہ طیارہ چند فنی وجوہات کی وجہ سے اپنی روٹ سے ہٹ گیا تھا اور اس کی رفتار اس قدر تیز ہو گئی تھی کہ وہ کسی طرح پائلٹ کے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا روٹ بھی اسی فنی خرابی کی وجہ سے تبدیل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے طیارہ اوٹان میں گرا تھا۔ اس کے بعد عمران نے وزارت خارجہ کے سیکریٹری کے قتل کی تحقیقات کی اور پھر اس نے اسٹرانگ روم کا بھی معائنہ کیا تھا جو بموں سے اڑا دیا گیا تھا۔ اسٹرانگ روم کے ملبے کے پاس اسے ایک چھوٹا سا بیج ملا تھا جس پر سرخ رنگ کے 3 ناک بنے ہوئے تھے۔ ناک انگریزی کے حرف کے BG کی شکل میں بنے ہوئے تھے اور ان کے درمیان نیلے رنگ میں 3 لکھا ہوا تھا۔ اس بیج کو دیکھتے ہی عمران سمجھ گیا تھا کہ سلور پاور کو اوٹان سے حاصل کرنے والے میں GB3 کے افراد تھے جن کا تعلق روسیہ سے الحاق شدہ ملک ساکلینڈ سے ہے۔ روسیہ میں GB3 کا نیٹ ورک تھا جبکہ ساکلینڈ میں بھی ایک ایسی ہی ایجنسی کام کرتی تھی جس کے GB3 کہلاتی تھی۔ اس ایجنسی کا تعلق ساکلینڈ کے سیکرٹ سروس سے تو نہیں تھا مگر اس کا دائرہ اختیار ساکلینڈ کے سیکرٹ سروس سے کہیں زیادہ تھا، اور ساکلینڈ میں جو اختیارات اور مراعات کے G3 کو حاصل تھیں وہ کسی بھی دوسری ایجنسی کو نہ تھیں۔ اس بیج کو دیکھ کر ہی عمران کو یقین ہو گیا تھا کہ واقعی سلور پاور اوٹان میں موجود تھا، کہ G3 نے سلور پاور کے حصول کے لیے جس قدر کارروائی کی تھی اس سے سلور پاور کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ روسیہ اگر سلور پاور کو اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی کے استعمال میں لے آتا تو اس کی ٹوٹی ہوئی کمر پھر سے جڑ سکتی تھی، اور اگر وہ اس بار سر اٹھانے میں کامیاب ہو جاتا تو پوری دنیا کی ایٹمی ٹیکنالوجی اس کے سامنے ہیج ہو کر رہ جاتی۔
روسیہ سب سے پہلے بہادرستان پر اپنا تسلط قائم کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بے پناہ زخم کھائے ہوئے تھا، اور بہادرستان پر اس کا قبضہ ہونے کا مطلب تھا کہ وہ پاک ایشیا اور اس کے ارد گرد کے دوسرے ممالک پر بھی اپنا سکہ جما سکتا تھا، جہاں اعزازی طور پر کرائمیا اور اس کے اتحادیوں کا کنٹرول تھا۔ اس لیے عمران نے سپر پاور کو روسیہ کے ہاتھوں سے جانے سے بچانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سپر پاور سے پاک ایشیا کے بھی چونکہ مفادات وابستہ تھے، اس لیے عمران نے سپر پاور حاصل کرنے کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ ساک لینڈ جانے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے اس بارے میں بھی حیرت تھی کہ سپر پاور اگر ساک لینڈ کے پاس ہے اور اس کے حصول کے لیے اسرائیل بھی کوشش کر رہا ہے، تو اب اسرائیل نے ساک لینڈ پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا تھا؟ ساک لینڈ کے جو مراعات اسرائیل دے سکتا تھا، وہ شاید روسیہ بھی نہیں دے سکتا تھا۔ بہرحال سپر پاور روسیہ کے پاس جاتا یا اسرائیل کے پاس، عمران کو یہ دونوں باتیں ہی منظور نہ تھیں۔ اسے وہ اوٹان سے واپس پاک ایشیا آیا اور اس نے بلیک زیرو کو تمام حالات سے بریف کیا اور پھر اپنی ٹیم لے کر ساک لینڈ روانہ ہو گیا۔ اس نے جولیا اور ٹیم کے ممبران کو فقط اتنا ہی بتایا تھا کہ ساک لینڈ میں ایک تیز رفتار اور فوری مشن مکمل کرنا ہے، جس تفصیلات وہ ساک لینڈ پہنچ کر بتائے گا۔ ساک لینڈ جانے سے اس نے ساک لینڈ میں موجود اپنے ایجنٹ کو متحرک کر دیا تھا۔ ان کی رپورٹ کے مطابق ساک لینڈ میں سخت ہنگامی حالات نافذ تھے۔ ساک لینڈ میں داخلے کے تمام راستوں پر پہرے لگا دیے گئے تھے۔ کسی خاص وجہ سے وہاں آنے والے ہر شخص کو سخت چیکنگ کی جا رہی تھی۔ اس چیکنگ میں سب سے زیادہ متحرک G3 تھے، جس کا چیف کارنس کارنو ساک لینڈ میں داخل ہونے والے ہر فرد پر گہری نظر رکھتا تھا۔ عمران سمجھ گیا تھا کہ یہ تمام ہنگامی حالات سپر پاورز کے لیے کیے گئے ہیں۔ عمران تمام حالات کا جائزہ کر کے اور انہیں مد نظر ہوئے ساک لینڈ آیا تھا۔ اس کے ذہن میں تاثر بھی موجود تھا کہ سپر پاور کے حصول کے لیے جس طرح اس سے کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس طرح بلغارنوی ایجنٹ بھی نیچے نہیں بیٹھے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ سپر پاور کے لیے بلغاریہ کا ڈی ایجنٹ میجر پرمود بھی پہنچ جائے۔ ایسی صورت میں ان دونوں کا ٹکراؤ ناگزیر ہے۔ عمران نے فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ سپر پاور کے معاملے میں میجر پرمود سے کسی قسم کی کوئی مفاہمت بھی نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر میجر پرمود اس سے پہلے سپر پاور حاصل کر لیتا ہے تو وہ اس کے راستے میں حائل نہیں ہوگا اور نہ اس کا تعاقب کر کے سپر پاور کے حصول کے لیے بلغاریہ کا رخ کرے گا۔ سیکرٹ سروس کے ممبران کو ہوٹل میں چھوڑ کر عمران کئی گھنٹوں سے غائب تھا۔ عمران نے ان سب کو سختی سے ہدایت دی تھی کہ وہ الگ ہو یا ایک ساتھ غلطی سے بھی اپنے اصلی نام نہیں لیں گے۔ ہنگامی حالات کے نفاذ کے بعد ساک لینڈ کے سیکرٹ سروس کے GB3 اور ان جیسی کئی ایجنسیاں ہر طرف سرگرم تھیں۔ وہ ساک لینڈ میں آنے والے ہر شخص پر گہری اور کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ سیکرٹ سروس کے سبھی ممبران ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، مگر انہوں نے الگ الگ اور مختلف ناموں سے کمرے بک کرا رکھے تھے۔ ہوٹل میں ایک ایک کر کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ متعارف ہونے والے انداز میں ملتے تھے۔ اس طرح انہوں نے جیسا ایک اپنا گروپ بنا لیا تھا۔ ان سب کا مقصد چونکہ سیاحت تھا، اس لیے وہ عموماً اکٹھے ہی نکل جاتے تھے اور ساک لینڈ کے تاریخی مقامات کی سیر و تفریح کرتے تھے۔ سیر و تفریح کی آڑ میں وہ عمران کے ساتھ میٹنگز کرتے تھے۔ عمران اس جستجو میں تھا کہ اسے کسی طرح سے یہ معلوم ہو جائے کہ GB3 کے کن ایجنٹوں نے اوٹان میں کارروائی کی تھی اور انہوں نے سپر پاور کو کہاں اور کس کے پاس رکھا تھا۔ وہ سب اس وقت ہال میں موجود تھے اور ایک بڑی میز کے گرد بیٹھے کافی پی رہے تھے، جبکہ عمران حسب معمول غائب تھا۔ کاغذات کی روح سے وہ الگ الگ ملکوں اور قومیتوں سے تعلق رکھتے تھے، مگر وہ زیادہ تر انگلش میں بات کرتے تھے، جو ساک لینڈ میں انٹرنیشنل لینگویج کے طور پر بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ آج کا ہمارا کیا پروگرام ہے مس ریٹا؟ کیپٹن شکی نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ دیکھو، یہاں ہم سبھی اجنبی ہیں اور اتفاق سے ہم سبھی یہاں پہلی بار آئے ہیں، جبکہ مسٹر ٹام ہیڈ عموماً یہاں آتے رہتے ہیں۔ ہم نے متفقہ طور پر انہیں اپنا گروپ لیڈر بنایا ہے، وہی ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ جولیا نے زیادہ سے لہجے میں کہا۔ نہ جانے مسٹر ٹام ہیڈ کہاں چلے گئے ہیں؟ ہم ان کا پچھلے 4 گھنٹوں سے انتظار کر رہے ہیں، اب تک تو انہیں آ جانا چاہیے تھا۔ صفدر نے کہا، لگتا ہے مسٹر ٹام ہیڈ کو آوارہ گردی کا بہت شوق ہے، اسے ان کا کئی گھنٹوں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، خیر آپ یہ تو نہ کہیں مسٹر روٹر، مسٹر ٹام ہیڈ ہمارے لیے عام اسپاٹ سے ہٹ کر اپنے اسپاٹس کا انتخاب کرتے ہیں جو یقیناً دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں مس ریٹا، مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ اگر وہ مزید 2-4 گھنٹے نہ آئے تو کیا ہم یہاں اسی طرح بیٹھے رہیں گے؟ ہم یہاں تفریح کے لیے آئے ہیں، ہوٹل میں قید رہنے کے لیے نہیں۔ تنویر نے کہا، بہرحال جو بھی ہے ہم ان کا انتظار تو کرنا ہی ہے، انتظار کے سوا اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ جولیا نے تنویر کی بات سمجھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے ہم سب کافی پی چکے ہیں، کیوں نہ ہم لان میں چلیں، وہاں ہماری چہل قدمی بھی ہو جائے گی اور وہاں مسٹر ٹام ہیڈ کا انتظار بھی کر لیں گے۔ صالح نے کہا،
ये ज्यादा मुनासिब रहेगा। चोले ने इस्पात में सर हिलाते हुए कहा तो वो सब एक एक करके उठ खड़े हुए। वो सब चूंकि अलग अलग फर्द के तौर पर एक ग्रुप की शक्ल में थे, इससे इन सब ने अपनी अपनी जेबों से अलग अलग रकम निकालकर एक जगह मेज पर रखकर कॉफी की रकम पूरी की थी और फिर वो होटल के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। थोड़ी देर में वो होटल के वसी लॉन में थे जहाँ होटल में ठहरे हुए अफराद बड़ी तादाद में मौजूद थे। वो पांचों वहां आए जबकि जोसेफ और जवाना इमरान की हिदायत के मुताबिक अपने कमरों में ही थे। वो इनके साथ बहुत कम उठते बैठते थे। यहाँ भी हम खोलकर बात नहीं कर सकते, जोले ने बड़बड़ाते हुए कहा। कहीं और चलें, तनवीर ने फौरन कहा। नहीं, मिस्टर टॉम हेड के आने तक हम कहीं और कैसे जा सकते हैं, जोले ने कहा तो तनवीर ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। मेरा ख्याल है कि हम सामने वाले पार्क में चलते हैं, वहाँ कम लोग हैं। मिस्टर टॉम हेड आए तो वहाँ से इन्हें साइंस से देख लेंगे। सफदर ने होटल के सामने मौजूद एक पार्क की तरफ इशारा करते हुए कहा। चलो, जोले ने कहा तो वो सब होटल के अहाते से निकलकर पार्क की तरफ बढ़ते चले गए। इस पार्क में इक्का दुक्का अफराद मौजूद थे जो खासे फासले पर थे। वो नरम घास पर एक नीम दायरे के सूरत में बैठ गए थे। इनकी नजरें होटल की तरफ ही थीं ताकि अगर इन्हें नजर आए तो वो इसे आवाज देकर इसे इस तरफ बुला सकें। हमें यहाँ आए हुए आज चौथा रोज है। इमरान ने हमें यहाँ क्यों बांध रखा है, जैसे हम यहाँ किसी मिशन पर नहीं, सचमुच तफरीह के लिए आए हों। मौका मिलते तनवीर ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। मिस्टर रूटर, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि पब्लिक प्लेस में असल नाम और मिशन के बारे में बात करने से परहेज करो। ने उसे बुरी तरह से गोते हुए कहा। ओह मगर यहाँ कौन है, हम सब अलग तो बैठे हुए हैं, तनवीर ने कहा। फिर भी हमारे लिए एहतियात बेहद जरूरी है मिस्टर रूटर, कैप्टन शकील ने कहा। ओके, तनवीर ने सर झटक कर कहा। आखिर मिस्टर टॉम हेड करते क्या फिर रहे हैं, जाते हैं तो वापस आना ही भूल जाते हैं, सौले ने कहा। हम यहाँ खाली हाथ आए हैं मिस मार्सा। हमने यहाँ जो काम करना है उसके लिए हमें लामहाला मखसूस सामान की ज़रूरत है। दायरे में मखसूस सामान का हसूल इस कदर आसान नहीं होता, चोले ने कहा तो साले ने इस्पात में सर हिला दिया। हैरत है, इतने रोज हो गए हैं मिस्टर टॉम हेड अभी तक ना मखसूस सामान हासिल कर सके हैं और न इन्होंने एसपी के बारे में कोई ठोस मालूमात हासिल की हैं। अब तक तो हमें वाकई अपना काम शुरू कर देना चाहिए था, सब्ता ने कहा। मिस्टर टॉम हेड काम सोच समझ कर और हर तरह की मालूमात हासिल करने के बाद करते हैं। अगर वो सोचे समझे बगैर और जल्दबाजी में काम करने के आदी होते तो आज हम यहाँ ना होते बल्कि कब्रों में पड़े हुए होते, कैप्टन शकील ने कहा। ये तो है, वाकई मिस्टर टॉम की जहानत अमेज प्लानिंग और हिकमत अमली लाजवाब होती है, वरना जिन मरहलों से हम गुजरे हुए हैं हम में से शायद कोई भी एक भी जिंदा ना होता। सौले ने कैप्टन शकील की तायद में सर हिलाते हुए कहा। जहां अमेज प्लानिंग, हिकमत अमली, वो सब कुछ अकेला नहीं करता, हम भी उसके साथ काम करते हैं। ये अलग बात है कि वो हम सबका लीडर बनकर हर मर्तबा क्रेडिट ले जाता है, वरना सलाहियतों में हम उससे किसी भी तरह कम नहीं है, तनवीर ने कहा। तुम उसके जिक्र से क्यों चलते रहते हो, जोले ने कहा। मैं कहाँ चलता हूँ, मैं तो अभी तनवीर ने इतना ही कहा था कि इन्हें होटल से जोसेफ और जवाना निकलकर इस तरफ आते दिखाई दिए। वो होटल के लॉन में इधर उधर देख रहे थे और शायद वो दोनों हमें तलाश कर रहे हैं। एक मिनट, मैं इन्हें यहीं बुला लाता हूँ, सफदर ने कहा और उठकर तेज तेज चलता हुआ पार्क से निकलता चला गया। कुछ देर के बाद वो दोनों को लेकर वहीं आ गया। आए, हम सबको मिस्टर टॉम हेड ने बुलाया है, सफदर ने उनके करीब आकर कहा तो वो सब चौंक पड़े। कहा, चोले ने उठते हुए कहा तो वो सब भी उठकर खड़े हो गए। मिस्टर जोस्टर और जजाल को इनके कमरों में मिस्टर टॉम हेड का फोन आया है। उन्होंने कहा तय है कि अगर हम दुनिया का नोमा अजूबा देखना चाहते हैं तो डॉन लेक पर पहुंच जाएं, वो हमारा वहीं इंतजार कर रहे हैं, सफ्तर ने कहा। डॉन लेक? ये डॉन लेक कहाँ है, तनवीर ने कहा। जहाँ भी हम टैक्सी में बैठकर वहाँ पहुंच जाएंगे, जोलिया ने कहा। तो फिर चलें, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ चलो, जोले ने इस्पात में सर हिलाते हुए कहा और वो पार्क से निकलते चले गए। क्या तुम दोनों भी हमारे साथ चलोगे, जोले ने जोसेफ और जवान से मुखातिब होकर कहा। यस मिस, बॉस ने हमें भी बुलाया है, जोसेफ ने इस्पात में सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, आओ, जोले ने कहा। उन्होंने होटल के अहाते में मौजूद 3 टैक्सियां हासिल की। एक टैक्सी में तनवीर, जोलिया और सालिया बैठ गए, दूसरी टैक्सी में कैप्टन शकील और सफदर, जबकि तीसरी टैक्सी में जोसेफ और जवाना बैठ गए थे। फिर टैक्सियां होटल के अहाते से निकल आईं और मेन रोड से होती हुई डॉन लेक की जानिब बढ़ती चली गई। तकरीबन 20 मिनट की मुसाफत के बाद दाल हुकूमत के एक बड़े पार्क में मौजूद थे, जहाँ एक बहुत बड़ी और खूबसूरत झील मौजूद थी। पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों को खूबसूरत अंदाज में रंग रंग के फूलों से सजाया गया था, जिनकी भीनी भीनी खुशबू हर सो फैली हुई थी। वो मुख्तलिफ कितों से गुजरते हुए झील की तरफ बढ़ने लगे। झील के किनारे हानी जंगल लगे हुए थे और झील के शफाफ और नीले पानी में पैडिंग कश्तियां और छोटी छोटी लॉन्चें और मोटर बोट्स तैरती हुई फिर रही थीं, जिनमें मंचले नौजवान और जोड़े हंसते मुस्कुराते एंजॉय कर रहे थे। गुड, दुल्हन माँ बाराती के आखिर यहाँ पहुंच गई है। अचानक उन्हें कब से इमरान की शौक आवाज नहीं तो वो ठटक कर रुक गए और मुड़कर देखने लगे तो इमरान एक रेलिंग के पास खड़ा इन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। वो एक नए मेकअप में था, जिस मेकअप में वो मिस्टर टॉम हेड बना हुआ था,
है ये मेकअप इस मेकअप से यकसा मुख्तलिफ था। इमरान ने अब जो मेकअप कर रखा था वो खासन सॉकलैंड के बशिंदों जैसा था। तो तुम यहाँ हो? जोला ने इसे देखकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। नहीं, मैं वहाँ हूँ जहाँ मुझे अपनी भी खबर नहीं है, इमरान ने चहक कर कहा। क्या फजूलियात है, ये तूने अपना हुलिया क्यों बदल लिया है? जोले ने कहा। ये सभी इमरान के करीब आ गए थे। रूप बदल बदल कर शहजादा गुलफाम बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद किसी की आंखों को भा जाऊं, इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। तो वो सब हंस पड़े। फजूल किस्म की बकबक करने के सिवा और तुम्हें आता ही क्या है? तनवीर ने कहा। मुझे गर्मी में ठंडा पसीना आता है और तुम्हें देखकर हैरत से आहें भरना आता है, इमरान भला आसानी से कहाँ बाज आने वालों में से था। इमरान प्लीज, जोले ने उसे रोकते हुए कहा। वो जानती थी कि अगर उसे ना रोका गया तो उसकी जुबान मिसाइल से भी तेज रफ्तार से चलेगी, जिसे रोकना किसी की बस की बात ना होगी। मैं तो प्लीज ही हूँ, बताओ, मिस्टर रोटर से पूछ लो, इमरान ने इसी अंदाज में कहा। क्या पूछ लूं? जोले ने तंग आकर कहा। यही कि तुमसे हाँ कराने के लिए मुझे इसे प्लीज कहना पड़ेगा या? इमरान ने कहा। तो वो सब एक बार फिर हंस पड़े। इमरान साहिब, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? सफदर ने हंसते हुए कहा। इमरान? कौन इमरान? कहाँ है? किधर है? इमरान ने अपने चारों तरफ देखते हुए कहा। मिस्टर टॉम हेड, आपने हमें डॉन लेक क्यों बुलाया है? सफदर जैसे फौरन अपनी गलती का एहसास हो गया था। पिकनिक मनाने के लिए, इमरान ने सादा से लहजे में कहा। क्या मतलब? चोले ने चौंक कर कहा। पिकनिक का मतलब पिकनिक होता है, इसका मतलब और मतलब होता है तो तुम भी बता दो, इमरान ने कहा। सर सच बताओ, क्यों बुलाया है तुमने हमें यहाँ? जोले ने कहा। अरे, बड़ी पुरफिजा जगह है, मैंने सोचा कि तुम होटल में रह रहकर बोर हो रहे होगे, क्यों ना तुम सबको किसी पिकनिक स्पॉट पर बुला लिया जाए। यहाँ हरियाली भी है, फूल भी है, नीली नीली झील भी है और लोगों की भी यहाँ कोई कमी नहीं है। दूल्हा तो तैयार है और मेरे ख्याल में सफदर भी खुतबा निकाह याद कर चुका होगा। अगर दुल्हन और इसका भाई तैयार हो तो, इमरान ने कहा। तो इन सबकी एक बार फिर हंसी निकल गई। मुंह धो रखो अपना, जोले ने जेर लब मुस्कुराते हुए कहा। कहो तो झील में डुबकी लगा कर नहा न लूं, इमरान ने उसी अंदाज में कहा। तो वो सब हंसे बगैर न रह सके। अचानक सामने से एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म वाला नौजवान तेज तेज चलता हुआ इन्हें अपनी तरफ आता दिखाई दिया। आप में से मिस्टर टॉम हेड कौन है? नौजवान ने करीब आते हुए कहा। क्यों भाई, तुमने इससे कोई कर्ज वसूल करना है? इमरान ने कहा। जी नहीं, मैं इनके लिए मास्टर कॉर्ली का पैगाम लाया हूँ, नौजवान ने खुश्क लहजे में कहा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ है कि हम में से कोई टॉम हेड है जिसके लिए तुम्हें मास्टर कॉर्ली ने पैगाम भेजा है? इमरान ने इसे गौर से देखते हुए कहा। वो पार्किंग में अपनी कारें मौजूद हैं, इन्होंने आपकी तरफ ही इशारा किया था, नौजवान ने कहा। तो इमरान ने दाएं तरफ कुछ फासले में मौजूद पार्किंग की तरफ देखा जहाँ एक स्याह सेडान खड़ी थी। सेडान की पिछले सीट पर एक नौजवान बैठा था जिसकी आंखों पर तारीक चश्मा था। वो इनकी तरफ ही देख रहा था। ठीक है, मैं ही हूँ टॉम हेड, बोलो क्या पैगाम है? इमरान ने काम में बैठे हुए मास्टर कॉर्ली का पहचान कर संजीदा लहजे में कहा। तो नौजवान ने जेब में हाथ डालकर कुछ कागजात और चंद चाबियां निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दी। आप फौरन रोस्ट कॉलोनी की कोठी नंबर 210 में चले जाएं। वहां आपके मतलब का सामान पहुंचा दिया गया है। आपके मतलब के तमाम कागजात भी तैयार हैं। पार्क में 2 ब्लैक सेडान मौजूद हैं जिन्हें आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। बाकी सब कुछ मास्टर कॉर्ली आपको वहीं आकर खुद बताएंगे, नौजवान ने कहा। और फिर वो इनका जवाब सुने बगैर मुड़ा और तेज तेज चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। क्या चक्कर है? इसके जाने के बाद जुले ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। बड़ा दमदार चक्कर है, बहरहाल आओ देखते हैं मिस्टर कॉर्ली ने हमारे लिए क्या किया है, इमरान ने कहा। लेकिन ये मास्टर कॉर्ली है कौन और जो खुद तुम्हारे पास क्यों नहीं आया? जोले ने सर झटक कर कहा। सारी बातें मुख पुलाव और बिरयानी खाकर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि दावत वलीना का सामान रोस्ट कॉलोनी की कोठी में तैयार होगा, इमरान ने कहा। और तेज तेज चलता हुआ बैरूनी रास्ते की तरफ बढ़ता चला गया। इसे आगे बढ़ते देखकर वो भी इसके पीछे हो लिए। इमरान ने नौजवान को सेडान में बैठे और सेडान को वहां से जाते देख लिया था। पार्किंग में बाकी 2 ब्लैक सेडान मौजूद थी। इमरान ने इनके नंबर देखे और एक कार की चाबी उसे जोसेफ की तरफ उछाल दी जिसने उसे हवा में ही दबोच दिया था। जवाना, सालिया, तनवीर, तुम जोसेफ के साथ बैठ जाओ और जोलिया, कैप्टन शकील और सफदर तुम मेरे साथ आ जाओ, इमरान ने कहा। तो तनवीर जोलिया से अलग कार में बैठने का सुनकर बुरे बुरे मुंह बनाने लगा। थोड़ी ही देर में पार्किंग से दोनों कारें निकलकर मेन रोड में आ गईं। इमरान की कार आगे थी जबकि जोसेफ उसके पीछे आ रहा था। इमरान मुख्तलिफ सड़कों पर यूं कार घुमाते ले जा रहा था जैसे वे इन सड़कों को बखूबी जानता और यहीं का रहने वाला हो। मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वो कार मज़ाफात की तरफ जाने वाली सड़क पर ले आया और फिर तकरीबन आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वो एक फर्निश्ड इलाके की तरफ कार मोड़ रहा था जिसके किनारे पर रोस्ट कॉलोनी का बोर्ड मौजूद था। दोनों अफतराफ में बड़ी बड़ी और जदीद कोठियां थीं जिनके दीवारों पर तरतीब वार नंबर लगे हुए थे। इमरान इन नंबरों को देखता हुआ कार एक कोठी के बड़े फाटक के पास ले आया। कोठी के गेट के साइड दीवारों पर 210 लिखा हुआ था। इमरान ने गेट के पास कार रोक दी थी।
सफदर जाकर गेट खोलो। इमरान ने सफदर को चाबियां देते हुए कहा तो सफदर सर हिलाता हुआ कार से उतर गया। उसने कोठी के गेट पर लगा हुआ ताला खोला और गेट को अंदर की तरफ धकेल दिया तो इमरान खोले हुए गेट के कार वसीम और अरीज कोठी के पोर्च में ले गया। उसके पीछे जोसेफ भी कार अंदर ले आया। दोनों कारों के अंदर आते ही सफदर ने गेट बंद कर दिया। इमरान कार पोर्च में ले आया मगर इसने कार का इंजन बंद नहीं किया और ना ही ये वो कार से बाहर निकला। वो कार में बैठे चारों तरफ देख रहा था। क्या बात है, अब कार से बाहर क्यों नहीं निकले? सुने ने हैरत भरे लहजे में कहा। कुछ नहीं, इमरान ने कहा। उसने कार का इंजन बंद किया और कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। कैप्टन शकील और जोला भी कार से बाहर आ गए जबकि पिछली कार से जवाना, जोसेफ, तनवीर और साले भी बाहर आ गए थे। बड़ी शानदार कोठी है, चूल्हे ने कोठी को देखते हुए कहा। कोठी का शानदार है, लगता है हमारा यहाँ इस्तकबाल भी किसी शानदार तरीके से होने वाला है, इमरान ने कहा। इसकी पेशानी पर लकीरें सी नमूदार हो गई थीं। क्या मतलब? इसकी बात सुनकर ना सिर्फ जोलिया बल्कि इसके दूसरे साथी भी चौंक पड़े। मुझे भी इसी खतरे का एहसास हो रहा है, कैप्टन शकील ने कहा। आप ठीक कह रहे हैं। इस कोठी में दाखिल होते ही खतरे की बू सूंघ ली थी। साले ने फौरन कहा। हैरत है, तुम सबको खतरे का एहसास हो रहा है तो फिर मुझे खतरे की बू क्यों महसूस नहीं हो रही है? जोलिया ने कहा। बेखतर जुकाम होगा, इमरान ने बरजस्ता कहा। सारी कोठी बाएं बाएं कर रही है, मुझे तो खतरा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, तनवीर ने भी जोलिया के अंदाज में कहा। मास्टर, अगर तुम कहो तो मैं और जोसेफ कोठी का राउंड लगाएं, जवाना ने कहा। ठीक है, अगर कोई जंगली चूहा नजर आए तो इसे पकड़ कर ले आना। जोलिया और सालिया इसका रोस्ट बनाएंगी, इमरान ने कहा तो जोसेफ और जवाना सर हिलाकर आगे बढ़ गए। और खाएगा कौन? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम और तनवीर, इमरान ने कहा। सब कोठी में फैल जाओ और हर जगह की तलाशी लो, मैं वाकई यहाँ खतरा महसूस हो रहा है, इमरान ने जकलक संजीदा होते हुए कहा तो वो सब भी संजीदा हो गए। वो सब कोठी में फैल गए थे। इमरान ने मास्टर कॉलनी की भेजी हुई चाबी से रिहायशी हिस्सा खोल दिया था। वो कोठी के एक एक हिस्से का जायजा ले रहे थे और फिर वो सब आकर एक हॉल नुमा कमरे में जमा हो गए। हमारे सिवा यहाँ कोई नहीं है, जोले ने कहा। हमने कोठी का चप्पा चप्पा छान मारा है, तनवीर ने कहा। इसके बावजूद यहाँ मुझसे खतरा महसूस हो रहा है, कैप्टन शकील ने होंठ भेजते हुए कहा। मास्टर कार्ली के जरिए हमने जो सामान मंगवाया था वो भी यहाँ नहीं है, इमरान ने कहा। और फिर तो हम वाकई खतरे में हैं, हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए, जोले ने कहा। नहीं बॉस, अब हम बाहर भी नहीं जा सकते, जोसेफ ने हॉल में दाखिल होते कहा तो वो सब चुनकर उसकी तरफ देखने लगे। क्या मतलब? जोले ने चुनकर कहा। मैं छत पर गया था, छत के चार दीवारी की आड़ से मैंने देखा कि बाहर मुसल्लह अफराद कोठी को घेर रहे हैं, जोसेफ ने कहा तो इमरान ने बेइख्तियार होंठ भेज दिए। ओ, हमने जाकर गलती की है, हमारे पास इन लोगों का मुकाबला करने के लिए कुछ भी नहीं है, तनवीर ने होंठ चबाते हुए कहा। ये इन बातों का वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा वरना हम हकीकतन मारे जाएंगे, इमरान ने घबराते हुए कहा। उनकी नजर कमरे की चारों तरफ गर्दिश कर रही थी। उसी लम्हे छत पर इन्हें धम धम की आवाजें सुनाई दी तो वो बुरी तरह से उछल पड़े। कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो, जल्दी करो, इमरान ने तेज लहजे में कहा। मगर इस बार उसके लहजे में गिराहट नहीं थी। वो सब बिजली किसी तेजी से दरवाजे पर खोली हुई खिड़कियों की तरफ झपट पड़े। बाहर भारी बोटों की आवाजें गूंज रही थी जैसे सॉकलैंड की फौज इस कोर्ट पर चढ़ दौड़ी हो। हमारा मेकअप चेक करने चले थे, रेमंड एयरपोर्ट के अहाते से बाहर निकलते हुए कहा। खामोशी से चलो, हमें यहाँ से जल्द निकलना है, ट्रैक ने तेज तेज चलते हुए कहा। क्यों? अब हमें क्या खतरा है? वो हमें चेक तो कर चुके हैं, रेमंड ने हैरत भरे लहजे में कहा। उन्होंने अभी सिर्फ हमें चेक किया है। कर्नल स्कार्नो जब जेब में हाथ डालेगा तो इसे फौरन मालूम हो जाएगा कि हम कौन हैं, ड्रैक ने कहा तो उसकी बात सुनकर रेमंड बुरी तरह से उछल पड़ा। क्या मतलब? कहीं आपने इसकी जेब में अपनी शनाख्त तो नहीं डाल दी, रेमंड ने हैरत भरे लहजे में कहा। ऐसा ही समझ लो, ड्रैक ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, ये आपने क्या किया है? वो तो पागल कुत्तों की तरह अपनी फोर्स लेकर हमारे पीछे आ जाएगा, रेमंड ने परेशान होते हुए कहा। मैं भी यही चाहता हूँ, ड्रैक ने कहा तो रेमंड हैरत भरी नजरों से ड्रैक की जानिब देखने लगा जैसे उसे ड्रैक की दिमागी हालत पर शक हो। वो दोनों तेज तेज चलते हुए एयरपोर्ट की पार्किंग में आ गए। जैसे वो पार्किंग में आए, एक काली ब्लैक सेडान टैक्सी तेजी से आगे बढ़कर इनके करीब रुक गई। आए साहिब, टैक्सी ड्राइवर ने फौरन दरवाजा खोलते हुए कहा जैसे उसे यकीन हो कि ये दोनों इसी कार में सवार होंगे। ड्रैग ने ड्राइवर की जानिब गौर से देखा और फिर सर हिलाकर ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने भी टैक्सी का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठने में देर नहीं लगाई थी। जैसे वो दोनों ब्लैक सेडान में बैठे, ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। उसी लम्हे ड्रैग ने एयरपोर्ट के अहाते में कर्नल स्कार्नो को भागते देखा तो उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। आपको यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ड्राइवर ने ड्रैग से मुखातिब होकर बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। इसे इस तरह ड्रैग से बात करते देखकर रेमंड बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? क्या तुम इन्हें जानते हो? रेमंड ने ड्राइवर को तेज नजरों से घूरते हुए कहा। मैं तुम्हें भी जानता हूँ मिस्टर लाटोश, ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा तो रेमंड बुरी तरह से उछल पड़ा। उछलने की वजह इसका सर कार के छत से टकरा गया था जिसकी वजह से उसके मुंह से सिसकारी सी निकल गई थी।
तुम लाटोश ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। ये कैप्टन नवाजिश हैं, ड्रैग ने कहा, जो दरअसल मेजर प्रमोद था। कैप्टन नवाजिश? ओ मगर ये, लाटोश ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ आफ्ताब सईद और लेडी ब्लैक तमसीला भी यही हैं। कैप्टन नवाजिश ने मुस्कुराते हुए कहा। मेजर प्रमोद की नज़रें बैक मिरर पर जमी हुई थीं। उसे कर्नल स्कारनू को एक हैवी जीप में अपने पीछे आते देख लिया था, जो आंधी और तूफान की तरह जीप दौड़ाता हुआ आ रहा था। ओह गुड, कहाँ है वो दोनों? लाटोश ने मुसर्रफ भरे लहजे में कहा। कैप्टन नवाजिश को देखकर और इसे आफ्ताब सईद और तमसीला का सुनकर इसे वाकई बेपनाह मुसर्रत हो रही थी। हम उन्हीं के पास जा रहे हैं, कैप्टन नवाजिश ने कहा। नहीं, फिलहाल हम उनके पास नहीं जा रहे, विजय प्रमोद ने संजीदगी से कहा। तो कैप्टन नवाजिश और लाटोश दोनों चौंक पड़े। और अगर हम इनके पास नहीं जा रहे तो कहाँ जा रहे हैं? लाटोश ने पूछा। कर्नल स्कारनू हमारे पीछे आ रहा है, मेजर प्रमोद ने कहा। तो लाटोश फौरन ब्लैक मिरर से बाहर देखने लगा और फिर ब्लैक सेडान के पीछे एक जीप, और जीप में कर्नल स्कारनू को देखकर उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। ओह, तो क्या आपने जानबूझकर इसे अपने पीछे लगाया है? कैप्टन नवाज ने बैक मिरर से कर्नल स्कारनू को देखते हुए कहा। हाँ, मेजर प्रमोद ने मबहम से लहजे में कहा, लेकिन हमारे इत्तला के मुताबिक सिवा पावर मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास है। फिर आप कर्नल स्कारनू को क्यों पीछे लगा रहे हैं? कैप्टन नवाजिश ने कहा। यही हमें सिवा पावर तक ले जाएगा, मेजर प्रमोद ने कहा। वो कैसे? कैप्टन नवाजिश ने पूछा। देखते जाओ तुम बस, मेजर प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ये अकेला क्यों आ रहा है? इसका क्या ख्याल है? क्या ये अकेला हमें पकड़ लेगा? लाटोश ने हैरत भरे लहजे में कहा। कैप्टन नवाजिश ने ब्लैक सेडान की रफ्तार बढ़ा दी थी। वो ब्लैक सेडान को नहायत तेजी से मुख्तलिफ सड़कों की तरफ मोड़ रहा था, लेकिन कर्नल स्कारनू भी जीप मुसलसल इसके पीछे इसी रफ्तार में ला रहा था। मज़ाफ़ात की तरफ चलो, हम इसे वहीं घेरेंगे, मेजर प्रमोद ने कहा। तो कैप्टन नवाजिश ने ब्लैक सेडान एक ज़ैली सड़क पर मोड़ दी और लंबा चक्कर काटता हुआ मेन सड़क पर आ गया। लेकिन जैसे ही वो मेन सड़क पर आया, इसे सड़क के दोनों अतराफ से तेज सायरन की आवाज़ सुनाई दी और फिर इन्होंने दाएं तरफ से 2 और बाएं तरफ से 4 पुलिस कारों को आते देखा, जो नहायत तेजी से इनकी कार की तरफ बढ़ रही थी। ओह, शायद उसने ट्रांसमीटर पर अपनी मदद के लिए पुलिस को बुला लिया है, कैप्टन नवाजिश ने कहा। पुलिस मोबाइल को देखकर मेजर प्रमोद के चेहरे पर भी एक लम्हे के लिए तख्तर सा आ गया था। कैप्टन नवाजिश ने ब्लैक सेडान को नहायत तेजी से दाएं तरफ मोड़ लिया था, जिस तरफ से 2 पुलिस मोबाइल आ रही थीं। तेजी से कार मोड़कर इस वजह से उसके टायर जमीन पर घिसते चले गए और कार घूमकर एक लम्हे के लिए तिरछी सी हो गई थी। मगर कैप्टन नवाजिश ने फौरन स्टीयरिंग को दाएं मोड़कर कार का बैलेंस किया। सामने से आने वाली पुलिस की कारें काफी करीब पहुंच चुकी थी। कैप्टन नवाजिश ने ब्रेक पैडल से पैर हटाते हुए एक्सीलरेटर पर पैर का पूरा दबाव डाल दिया। ब्लैक सेडान को एक जोरदार झटका लगा और वो तोप से निकले हुए गोले की तरह सामने से आने वाली पुलिस की कारों की तरफ बढ़ती चली गई। ब्लैक सेडान को इस तरह इंतहाई तेज रफ्तार से अपनी तरफ आते देखकर दोनों मोबाइल कारों के ड्राइवरों ने स्टीयरिंग बाएं मोड़ लिए थे। इन दोनों की कारें दाएं बाएं मुड़कर अपनी साइड में हो रही थीं कि कैप्टन नवाज की ब्लैक सेडान इनके दरमियान से निकलती चली गई। ब्लैक सेडान का फ्रंट दोनों पुलिस मोबाइल कारों की साइडों से टकराता हुआ गुजर गया था, जिसकी वजह से दोनों पुलिस मोबाइल कारें सड़क पर झटके खाकर घिसती हुई दाएं बाएं हो गई थीं। कैप्टन नवाज ने जिस तरफ ब्लैक सेडान मोड़ी थी वो मुखालिफ सिमत का वन वे था। सामने से कई कारें आ रही थी। टैक्सी को इस तरह तेज रफ्तार से रॉन्ग वे पर आते देखकर कई कारों को सड़क पर ब्रेक लगा गए थे, जिसकी वजह से पीछे आने वाली कई कारें एक दूसरे के बैक से साइड पर टकरा गई थीं और फिजा तेज धमाकों और इंसानी चीखों से गूंज उठी थी। ये देखकर मेजर प्रमोद और कैप्टन नवाजिश ने बेइख्तियार हॉर्न भेज दिए थे। कैप्टन नवाजिश ब्लैक सेडान के सामने से आने वाली गाड़ियों से बचने के लिए दाएं बाएं मुड़ता हुआ आगे ले जा रहा था, जिसकी वजह से सड़क पर अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया था। फिर अचानक मुख्तलिफ सड़कों से कई मोबाइल कारें निकली और इनके पीछे लग गईं। पुलिस मोबाइल के सायरन सुनकर सड़क पर मौजूद कारें तेजी से साइड पर होती जा रही थीं, जिसकी वजह से कैप्टन नवाजिश को सीधी सड़क पर कार से आना और आसान हो गया था। हमारे पीछे कमोबेश 20 मोबाइल कारें हैं, लाटोश ने मेजर प्रमोद से कहा। कर्नल स्कारनू ने शहर की सारी फोर्स हमारे पीछे लगा दी है, मेजर प्रमोद ने हॉर्न भेजते हुए कहा। अब क्या करना है? कैप्टन नवाजिश ने मेजर प्रमोद से कहा। फिलहाल तो हमें इनसे पीछा छुड़ाना है, कुछ करने के बारे में बाद में सोचेंगे, मेजर प्रमोद ने कहा। तो कैप्टन नवाजिश ने अस्पात में सर हिला दिया। उसे ब्लैक सेडान के फुल स्पीड से छोड़ रखा था, जिसके पीछे आने वाली मोबाइल कारें भी इस रफ्तार से आ रही थीं। ये सड़क कहाँ जाती? मेजर प्रमोद ने पूछा। ये सड़क सेंट क्रॉस बर्च की तरफ जा रही है, नीचे जाने वाली सड़क भी इस तरफ जाती है, दूसरी तरफ फ्रास्को सिटी है, कैप्टन नवाजिश ने कहा। मेजर प्रमोद ने दाएं तरफ देखा। दाएं तरफ एक और चौड़ी सड़क थी, जिस पर ट्रैफिक मुखालिफ सिंध पर जा रही थी। कैप्टन नवाजिश की कार अब बुर्ज की तरफ जा रही थी और बुलंद हो रही थी। सड़क आगे से खाली थी,
तभी शायद पुलिस मोबाइल्स ने इस तरफ आने का रास्ता बंद कर दिया था। पुल अब ज्यादा दूर नहीं है, मेजर प्रमोद ने ब्लैक सुडान की बुलंदी की तरफ जाते हुए देखकर कहा। जी हाँ, कैप्टन नवाजिश ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। मोबाइल पुलिस मुसलसल सायरन बजाते हुए इनके पीछे आ रही थी। इनकी रफ्तार बेहद तेज हो गई थी और दो कारें इनके दाएं बाएं और आ रही थी, जिनसे पुलिस वालों ने इनकी कार पर फायरिंग शुरू कर दी थी और पीछे से एक मोबाइल कार इनकी कार के बैक पर टक्कर मारकर इसे उठाने की कोशिश कर रही थी। इनकी 2 सिलेंडर गाड़ियां हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, लाटोश ने कहा। फिर क्या हुआ? मेरी कार 4 सिलेंडर है, मैंने यहाँ आकर झक नहीं मारी, काम किया है, कैप्टन नवाजिश ने कहा। और तुमने 4 सिलेंडर कार को टैक्सी में तब्दील कर रखा है, लाटोश ने कहा। हाँ, कैप्टन नवाजिश ने कहा। इसने कार का गियर बदला और कार फराटे भरती हुई बिजली किसी तेजी से पुलिस मोबाइल से दूर होती चली गई। कार को दूसरी सड़क पर ले चलो, मुझे प्रमोद ने सेट बेल्ट बांधते हुए कहा। कैप्टन नवाज और लाटोश ने भी सीट बेल्ट बांधने में देर न लगाई थी। क्या क्या आपने कहा दूसरी सड़क पर? अरे बाप रे, हम सड़क से 20 फुट की बुलंदी पर हैं। कार दूसरी सड़क पर ले जाने का मतलब जानते हैं आप? लाटोश ने मेजर प्रमोद की बात सुनकर बौखलाए हुए लहजे में कहा। लेकिन मेजर प्रमोद और कैप्टन नवाज ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं थी। एक लम्हे के लिए कैप्टन नवाज ने जिस सड़क की तरफ देखा, उसने कार की रफ्तार एक लम्हे के लिए कम की और फिर बढ़ा दी। वो सड़क के किनारे किनारे कार ले जा रहा था। निचली सड़क पर कारों का अच्छा खासा अज़्ज़ाम था। कैप्टन नवाजिश कार से फासले पर सड़क का गैप देखकर कार को तेजी से इस तरफ भगाता ले गया। सड़क के किनारों पर डबल ईंटों की भी लाइन लगी हुई थी। कैप्टन नवाजिश ने कार को इस पट्टी की तरफ किया और कार पूरी कुव्वत से इस पट्टी से टकराई और फिजा में किसी जेट जहाज की तरह ऊपर उड़ती चली गई। कार को सड़क से इस तरह निकलते देखकर इस कार को देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। नीचे सड़क पर मौजूद कारों के ड्राइवरों ने इस तरह ब्लैक सुडान को हवा में उड़ते देखकर ब्रेकें लगा दी थी, जिसकी वजह से कारें एक दूसरे से टकराती हुई दाएं बाएं मुड़ती जा रही थीं। ब्लैक सुडान में बैठते हुए लाटोश की आंखें फटी हुई थीं। इसने कार को हवा में बुलंद होते और फिर दाएं से नीचे जाते देखा तो उसने बेइख्तियार आंखों पर हाथ रख लिया। ब्लैक सुडान सड़क पर खड़ी एक कार के ऊपर से गुजरती हुई जोरदार धमाके से सड़क पर आई थी। टायरों के बल सड़क पर गिरने से कार एक लम्हे के लिए उछली। इससे पहले कि कार घूमकर पलट जाती, कैप्टन नवाजिश ने फौरन स्टीयरिंग संभालते हुए एक्सीलरेटर दबा दिया। ब्लैक सुडान सड़क पर लंबी लकीरें बनाती हुई आगे बढ़ती चली गई। इस कदर बुलंदी से नीचे गिरते ही ब्लैक सुडान का एक जोरदार झटका लगा था कि इन तीनों की हड्डियां तक कड़कड़ा कर रह गई थी। कैप्टन नवाज कार संभालने में एक लम्हे की भी देर करता तो इसकी कार सड़क पर गिरकर दूर तक पलटती चली जाती और फिर ब्लैक सुडान के साथ इसका जो हशर होता वो अजर मन अशम्स था। खुदा की पनाह, तुम कार चला रहे हो या जेट फाइटर? लाटोश ने आंखें फाड़ते हुए कहा। कैप्टन नवाज ने कार सड़क पर लाकर फुल स्पीड पर छोड़ दी थी। उसके हाथों में स्टीयरिंग कभी दाएं तरफ घूम रहा था, कभी बाएं तरफ, और बल्कि सेडान जनाटेदार आवाज निकालते हुए सड़क पर मौजूद दूसरी गाड़ियों के दाएं बाएं से गुजरती जा रही थी। ऊपर सड़क पर पुलिस मोबाइल कारें इस स्पॉट पर आकर रुक गई थीं, जहां से कैप्टन नवाज ब्लैक सुडान को उड़ाकर दूसरी सड़क पर ले गया था। अब इसकी कार मतवाजी थी। कैप्टन नवाजिश कार को सड़क की साइड में ले आया था। इस तरह चूंकि पुलिस मोबाइल मौजूद ना थी, इसलिए वो बड़े इत्मीनान अंदाज में ड्राइविंग कर रहा था। इसका ये इत्मीनान आर्जी ही साबित हुआ था। आसमान पर अचानक सफ़ेद रंग का एक मोबाइल हेलीकॉप्टर नमूदार हुआ और तेज से इनकी कार की तरफ बढ़ने लगा। ओ, वो मोबाइल हेलीकॉप्टर ले आए हैं, कैप्टन नवाजिश ने हेलीकॉप्टर पर नजर पड़ते हुए कहा। चलते रहो, हमें हर हाल में बुर्ज तक पहुंचना है, मुझे प्रमोद ने कहा। हेलीकॉप्टर फड़फड़ाता हुआ इनके कार पर से गुजरता चला गया। आगे जाकर वो मुड़ा तो उन्होंने हेलीकॉप्टर के दरवाजे खुलते देखे। एक साइड पर 2 मशीन गन बरदार मौजूद थे, जबकि दूसरे दरवाजे पर एक पुलिस एहलकार माइक्रोफोन बाहर निकाले ऊंची आवाज में बोलता हुआ सड़क पर मौजूद कारों को साइड में कर रहा था। दूसरे लम्हे सामने से इन्होंने कई पुलिस मोबाइल कारों को आते देखा। वो रोड ब्लॉक कर चुके हैं, लाटोश ने सामने देखते हुए कहा। सड़क पर चलने वाली कार तेजी से साइडों से लग गई थी, जबकि पुलिस मोबाइल कारें, जिनकी तादाद 8-10 के करीब थी, सड़क पर ब्लॉक बनाकर खड़ी हो गई थी और इनमें से मुसल्लह सिपाही निकलकर अपनी कारों की आड़ लेकर खड़े हो गए थे और उन्होंने कारों पर गन्ने रखकर उनका रुख सामने हेलीकॉप्टर के ऊपर से, जबकि मोबाइल हेलीकॉप्टर खासी नीची परवाज करता हुआ अमूदी का ट्रैगर दुबा मतवाजी उनकी तरफ आ रहा था। खून गर्म रखने के लिए अच्छा एडवेंचर है, मेजर प्रमोद ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा। खून खुश्क हो रहा है, खाक एडवेंचर है, लाटोश ने फौरन कहा। नवाजिश, मेजर प्रमोद ने कैप्टन नवाजिश से कहा। यस सर, कैप्टन नवाजिश ने कहा। इसकी कार और पुलिस ब्लॉकिंग में तकरीबन 1000 फीट का फासला है, जबकि हेलीकॉप्टर इनके खासा नज़दीक आता जा रहा था।
सामान लाए हो साथ? मेजर प्रमोद ने कहा। यस सर, सामान कार की डिग्गी में है, अलबत्ता बुलेट ब्लास्टर आपकी सीट के नीचे है, कैप्टन नवाजिश ने कहा। इसी में हेलीकॉप्टर इनके सामने आ गया। उसकी परवाज़ काफी खासी नीची थी। वो शायद इनकी कार को रोकना चाहते थे। कैप्टन नवाज ने तेजी से कार मोड़ी और हेलीकॉप्टर के बाईं तरफ से निकलने लगा। चूंकि दाईं तरफ मशीन गन ब्रादर मौजूद थे, इससे कैप्टन नवाजिश ने बाईं तरफ से कार मोड़ी थी। लेकिन हेलीकॉप्टर इस वक्त मुड़ गया था और वो इस अंदाज से मुड़ा था कि कैप्टन मशीन गन ब्रादर का रुख इनकी कार की तरफ हो रहा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर मुड़ा था, उन पर फायरिंग खोल दी थी। गोलियां कार की बॉडी में ले आया था। हेलीकॉप्टर इसी तरह तिरछे अंदाज में इनकी तरफ पलटा था। हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसते देखकर उन्होंने फौरन अपने सर नीचे कर लिए थे। गोलियां विंड स्क्रीन पर पड़ी तो विंड स्क्रीन छनाके से टूटकर अंदर आ गिरी। मेजर प्रमोद ने फौरन सीट के नीचे हाथ डालकर एक रिवॉल्वर नुमा बड़ी गन निकाली थी। गन का चैम्बर खासा बड़ा और फूला हुआ था। अभी इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम कार रोक लो, मेजर प्रमोद ने बुलेट ब्लास्टर का लॉक खोलते हुए कहा तो कैप्टन नवाजिश ने फौरन कार को ब्रेक लगा दिए। कार के टायर दूर तक घिसटकर लंबी लकीरें खींचते चले गए और कार सड़क के ऐन दरमियान में तिरछी होकर खड़ी हो गई। वो पुलिस मोबाइल कारों से काफी फासले पर थी। जबकि ये कारें रुकी, मेजर प्रमोद का दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर आ गया और कार की आर्म में बैठ गया। हेलीकॉप्टर से मुसलसल फायरिंग हो रही थी और गोलियां कार की बॉडी से टकरा रही थीं। कार की छत और बॉडी में बेशुमार सुराख हो गए थे। लाटोश और कैप्टन नवाजिश फौरी तौर पर नीचे झुक गए थे। कार की बॉडी इतनी मजबूत थी कि अभी तक कोई गोली ना पेट्रोल टैंक पर पड़ी थी और ना कोई गोली इन्हें छू नहीं सकी थी। हेलीकॉप्टर के पायलट ने कार से एक नौजवान को निकलते और इसके हाथ में गन देकर हेलीकॉप्टर को फौरन ऊपर कर लिया था। हेलीकॉप्टर इस बार इनकी कार के ऊपर से गुजरा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर कार के ऊपर से गुजरा, मेजर प्रमोद ने गन का रुख हेलीकॉप्टर की तरफ करके इसका ट्रिगर दबा दिया। गन से ठक्कर आवाज के साथ एक सुर्ख शोला सा निकला और हेलीकॉप्टर के बेस में घुसता चला गया। हेलीकॉप्टर उनसे 200 फुट दूर था और वापस मुड़ने ही लगा था कि जगलक एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और हेलीकॉप्टर फिजा में आग का गोला बनकर और टुकड़े टुकड़े होकर बिखरता चला गया। खौफनाक धमाके से हेलीकॉप्टर के टुकड़े दूर तक जा गिरे थे। कई टुकड़े इनके कार पर भी गिरे थे। चलो, मेजर प्रमोद ने फौरन कार में बैठते हुए कहा तो कैप्टन नवाजिश ने सर हिलाकर कार आगे बढ़ा दी। कार पूरी रफ्तार से हेलीकॉप्टर के जलते हुए ढांचे के करीब से गुजरती चली गई, जो धमाके से नीचे आ गिरा था। हेलीकॉप्टर को इस तरह तबाह होते देखकर मोबाइल कारों के पीछे पोजीशन लिए हुए पुलिसमैन बौखला गए थे और इन्होंने कार को अपनी तरफ आते देखकर दूर ही से इनकी कार पर फायरिंग शुरू कर दी थी। मेजर प्रमोद ने खिड़की से गन वाला हाथ बाहर निकाला और झटके बाद दीगरे ट्रिगर दबाता चला गया। गन से सुर्ख रंग के शोले निकलकर पुलिस मोबाइल कारों की तरफ बढ़े और 4 मुख्तलिफ कारों में घुसते चले गए। मेजर प्रमोद ने जानबूझकर दरमियान वाली कार पर ब्लास्टर बुलेट्स फायर किए थे। अब इनकी कार 300 फुट दूर होगी। जबकि बाद दीगरे सड़क पर 4 धमाके हुए और पुलिस कारों के साथ पुलिस एहलकारों के भी टुकड़े उड़ते चले गए। सड़क का ब्लॉक हिस्सा देखकर जिसे खौफनाक आग के अलाव में छुप गया था। ये देखकर कैप्टन नवाजिश ने कार की रफ्तार और तेज कर दी और फिर उसकी कार जैसे आग के अलाव में घुसती चली गई। इनके चारों तरफ आग ही आग थी। कार के टायरों के नीचे जलती हुई कारों के चंद टुकड़े आगे आ गए थे, जिसकी वजह से कार एक बार फिर फिजा में उछली और फिर कार जैसे उड़ती हुई आग के अलाव की दूसरी तरफ से निकल आई। खौफनाक धमाके से बेशुमार पुलिस एहलकारों के टुकड़े हो गए थे और लातादार जख्मी भी हुए थे। इन्हें इस वक्त अपनी ही होश ना थी और इनकी कार पर फायरिंग क्या करते। कार उड़ती एक बार फिर सड़क पर आई और सीधी होकर सामने दौड़ती चली गई। तौबा तौबा, आज तो सचमुच जान के लाले पड़ गए हैं। अगर जान बच गई तो मैं पूरे 101 रुपए की खैरात करूंगा। झटके खाने के बाद लाटोश ने संभलते हुए कहा। उसका रंग जर्द हो रहा था, जबकि कैप्टन नवाजिश और मेजर प्रमोद इत्मीनान से बैठे थे। इनके पीछे सड़क पर इसी तरह आग के शोले लपक रहे थे। कार सड़क पर लाती कैप्टन नवाजिश ने स्पीड फुल कर दी थी। कार किसी गोली किसी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी। 5 मिनट के मजीद सफर के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा बुर्ज दिखाई दिया। बुर्ज खासा चौड़ा था। बुर्ज पर खासी नकलो हरकत नजर आ रही थी। वहाँ भी बेशुमार पुलिस मोबाइल्स मौजूद थी और पुलिसमैन इधर उधर भागते हुए दूसरे कारों को हटाकर वहां तेजी से पोजीशन संभाल रहे थे। मेरे साहिब, आगे ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहां से हम निकल सकेंगे। अगर इस बार कैप्टन साहब ने कार उड़ाने की कोशिश की तो या तो हम पुलिस मोबाइल पर जा गिरेंगे या सीधा दरिया में, लाटोश ने मुसलसल सामने देखते हुए कहा।
मैं जानता हूँ, मेजर प्रमोद ने कहा। कैप्टन नवाज ने होंठ भींच रहे थे। वो कार को इस रफ्तार से दौड़ाते ले जा रहा था जैसे वो वाकई मेजर प्रमोद के हुक्म का मुंतजिर हो। उस लम्हे सामने से इन्होंने आग का एक शोला अपनी तरफ आते देखा। ओह मिसाइल, उन्होंने मिसाइल फायर कर दिया है कार को, लाटोश ने हलक के बल चीखते हुए कहा। लेकिन कैप्टन नवाज जैसे उसकी बात ही सुन नहीं रहा था। उसकी नजर आग के गोले पर जमी हुई थी जो भरक रफ्तार से कार की तरफ आ रहा था। और फिर जैसे ही मिसाइल आग उगलता हुआ एन कार के सामने आया, कैप्टन वाजिश ने बिजली की सी तेज से कार को बाएं तरफ मोड़ दिया। कार को एक जोरदार झटका लगा और उसके दाएं तरफ के दो व्हील उठते चले गए और कार बाएं तरफ तिरछी हो गई। मिसाइल इस कार से चंद इंच के फासले से गुजरता चला गया और फिर वो दूर सड़क पर जाकर गिरा और फिजा में एक बार फिर हौलनाक धमाके से गूंज उठी। कैप्टन नवाज ने कार को सीधा किया और पुल की तरफ बढ़ता चला गया। कार के टायर बार बार ब्रेकें लगाने और आगे से गुजरने की वजह से कमजोर हो गए हैं और किसी भी वक्त फट सकते हैं। इससे कार को दरिया में गिरा दो, मेजर प्रमोद ने कैप्टन नवाजिश से कहा। अचानक सामने से यक्के बाद दीगरे दो और मिसाइल फायर हुए। कैप्टन नवाजिश ने कार दाएं तरफ लहराई। दोनों मिसाइल इसकी कार के बाएं और ऊपर से गुजरते चले गए। कार चूंकि पुल पर आ चुकी थी और पुल के दोनों अतराफ जंगले लगे हुए थे, इससे कैप्टन नवाजिश ने फौरी तौर पर कार को दाएं जंगले की तरफ मोड़ा। कार जंगले से तोप से निकलते हुए गोले की तरह टकराई और जंगले को तोड़ती हुई एक बार फिर हवा में बुलंद होती चली गई। इस बार वो आमूदी हुई और फिर वो सीधी दरिया की तरफ बढ़ती चली गई। कार में मौजूद लाटोश की तेज चीख उभरी थी और फिर कार पानी में छपाके के साथ गिरती चली गई। सॉकलैंड की मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ मार्शल हास्टर, जो खुद को मार्शल कहलवाना पसंद करता था, अभी ऑफिस में आकर बैठा ही था कि अचानक मेज पर पड़े हुए कई रंगों के फोन्स में से नीले रंग के फोन की घंटी बज उठी। ये जनरल फोन था जिस पर किसी भी महकमे से उसे डायरेक्ट कॉल की जा सकती थी। जैसे ही फोन की घंटी बजी, मार्शल हास्टर ने हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठा लिया। यस, मार्शल हास्टर स्पीकिंग, मार्शल हास्टर ने कड़क लहजे में कहा। कैप्टन स्कारोफ बोल रहा हूँ मार्शल, दूसरी तरफ से एक नौजवान सी आवाज सुनाई दी। लहजा खासा मुअद्दबाना था। कैप्टन स्कारोफ डास्टो, मार्शल हास्टो ने इसका पूरा नाम लेते हुए कहा। स्कारोफ डास्टो मिलिट्री इंटेलिजेंस का कैप्टन था जिसे मार्शल हास्टो ने अंडरग्राउंड वर्ल्ड पर नजर रखने के लिए कहा था। कैप्टन स्कारोफ बेहद ज़हीन, फाल और टॉप एजेंटों में से शामिल होता था जिसने अपनी ज़हानत और अपनी बेहतरीन हिकमत अमली के बरवे कार लाकर बहुत जल्द अंडरग्राउंड वर्ल्ड में अपनी जगह बना ली थी। ये बज़ाहिर इनके साथ इन्हीं के अंदाज में रहता था, मगर हकीकत में वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम करता था और अंडरवर्ल्ड की खबरें मार्शल हास्टो को पहुंचाता था, जिसका फ़ायदा उठाकर मार्शल हास्टो वर्ल्ड के बड़े बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालकर इन्हें कैफरे करतार तक पहुंचा चुका था। यही वजह थी कि मार्शल हास्टो कैप्टन स्कारोफ पर बेहद एतमाद करता था और उसकी हर रिपोर्ट की नहायत तवज्जो से सुनता था और इस पर फौरी कार्रवाई भी करता था। यस मार्शल, मैं कैप्टन स्कारोफ बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से कैप्टन स्कारोफ ने कहा। क्या अंडरवर्ल्ड में फिर किसी ने नए मगरमच्छ का तुमने सुराग लगा लिया है? मार्शल हास्टो ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैंने आपको किसी अंडरवर्ल्ड के मगरमच्छ के बारे में बताने के लिए फ़ोन नहीं किया, दूसरी तरफ से कैप्टन स्कारोफ ने कहा। तो फिर किस लिए फ़ोन किया है? मार्शल हास्टो ने पूछा। मार्शल जी, आप पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में जानते हैं, दूसरी तरफ से कैप्टन स्कारोफ ने कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस? मार्शल हास्टो ने हैरत भरे लहजे में कहा। फिर जकलक वो इस पूरी तरह से उछल पड़ा जैसे अचानक उसकी कुर्सी में हजारों वोल्ट का करंट दौड़ गया हो। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस? तुमने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का ही नाम लिया है ना? मार्शल हास्टो ने तेज लहजे में कहा। यस मार्शल, दूसरी तरफ से कैप्टन स्कारोफ ने कहा। ओ, क्या पूछना चाहते हो तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में? मार्शल हास्टो ने चिकते हुए अंदाज में कहा। मार्शल, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस सॉकलैंड में है, दूसरी तरफ से कैप्टन स्कारोफ ने कहा। तो मार्शल हास्टो एक बार फिर उछल पड़ा। इस बार उसका चेहरा हैरत और शदीद परेशानी से बिगड़ गया था। क्या कहा तुमने? पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस सॉकलैंड में है? मार्शल हास्टो ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। यस मार्शल, कैप्टन स्कारोफ ने कहा। ओह, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस सॉकलैंड में है, मगर ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का सॉकलैंड में क्या काम? वो यहाँ कैसे आ सकती है? ओह, मार्शल हास्टो ने कहा। उसके लहजे में शदीद हैरत के साथ साथ बेपनाह परेशानी के तासुरात भी नुमायां थे। मैंने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लीडर अली इमरान को देखा है मार्शल, मैं इससे मिला भी था, मेरी इससे बात भी हुई थी, कैप्टन स्कारोफ ने कहा। और इस बार अली इमरान का नाम सुनकर मार्शल हास्टो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। अली इमरान भी यहाँ है?
मार्शल हास्ट ने कहा। यस मार्शल, वो अली इमरान ही था। देखने में बज़ाहिर वो अहमक सा दिखाई देता था, मगर मैंने उसके चेहरे और उसकी आंखों में बेपनाह जहानत की चमक देखी थी। कैप्टन स्कारुफ ने जवाब देते हुए कहा, कैसे मुलाकात हुई थी, मुझे पूरी तफसील बताओ जल्दी। मार्शल हास्ट ने तेज तेज बोलते हुए कहा, मार्शल, मैं इन दिनों मास्टर कार्ली के ग्रुप में शामिल हूँ। मैंने मास्टर कार्ली को अपनी कारकर्दगी से अपना गर्विदा बना लिया था, जिसकी वजह से मास्टर कॉर्ली ने मुझे अपना नंबर 2 बना लिया था। मुझे काफ़ी अरसे से मास्टर कॉर्ली पर शक था कि वो मंशियात का बहुत बड़ा स्मगलर है और मंशियात का वसी पैमाने पर धंधा करता है। उसकी शोहरत सुनकर इस बार मैंने इस पर हाथ डालने का फैसला किया था। मैंने काफ़ी अरसे से मास्टर कॉर्ली पर नज़र रखी हुई थी। एक रोज़ जब मास्टर कॉर्ली अपने चंद साथियों के साथ कहीं जा रहा था तो मैंने किराए के चंद बदमाशों से कहकर इस पर हमला करा दिया, जिन्होंने इसके तमाम साथियों को इसके नंबर 2 समेत हलाक कर दिया था। फिर मैंने इनके दरमियान कोड पड़ा और मैंने मास्टर कॉर्ली की जान बचाते हुए इन किराए के बदमाशों को हलाक कर दिया, जिसकी वजह से मास्टर कॉर्ली मेरा गर्विदा हो गया था। वो मुझे अपने साथ अपने खुफिया अड्डे में ले गया और उसने मुझसे मेरे बारे में मामूली पूछगीछ के बाद फ़ौरन मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। मैंने चंद ही रोज़ में उसे अपनी कारकर्दगी की धाक जमा ली तो उसने मुझे अपना नंबर 2 बना लिया। मैं इसकी जड़ों तक पहुंचने के लिए हाथ पांव मार रहा था, मगर इसके खिलाफ मुझे सबूत इकट्ठे करने में खासी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वो हर काम नहायत राजदारी से करने का आदी था। उसने अपना एक खुफिया अड्डा बना रखा था और हर तरह की डीलिंग वो इस खुफिया अड्डे में जाकर करता था, जिसके बारे में वो किसी को भी कुछ नहीं बताता था। यहाँ तक कि इसके खुफिया अड्डे के बारे में इसके राजदार साथी भी कुछ नहीं जानते। बहरहाल मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। आज सुबह जब मास्टर कॉर्ली मुझसे मिला तो वो खासा पुरजोश दिखाई दे रहा था, जैसे उसके हाथ कोई बहुत बड़ा खजाना आ गया हो। बातों बातों में उसने मुझे बताया कि वो अपने खुफिया अड्डे में जा रहा है। मैंने किसी पार्टी से बहुत बड़ी डील करनी है। अगर उसकी ये डील हो गई तो इसके वारे न्यारे हो जाएंगे। मैंने उसे खरीदने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे सिर्फ इतना ही मालूम हो सका कि बहुत बड़ी पार्टी है जो मास्टर कॉर्ली के साथ मखसूस असले के डील करना चाहती है। असले की डीलिंग का सुनकर मैं चौकन्ना हो गया। मैंने मास्टर कॉर्ली को सिर्फ मंशियात की स्मगलिंग की हद तक जान पाया था, वो असले के भी डील करता था। ये मेरे लिए नई बात थी, इससे मैंने हर सूरत में इस डील के बारे में मालूमात हासिल करने का इरादा कर लिया। मास्टर कॉर्ली हस्बे मामूल जा रहा था, इसलिए उसकी टाई दुरुस्त करने के बहाने मैंने टाई के पीछे वॉइस पिन लगा दी। वॉइस पिन बाल से मैं भी बरीक पिन है, इसलिए मास्टर कॉर्ली किसी भी तरह से इसकी हकीकत नहीं जान सकता। वो जहाँ भी जाता इस वॉइस पिन के जरिए मैं इसकी आवाज़ को एक स्पेशल रिसीवर पर आसानी से सुन सकता था। वह मास्टर कॉर्ली अपने खुफिया अड्डे में गया। वहाँ उसने प्रिंस ऑफ धमकी से मुलाकात की। इसकी बातचीत सुनकर मुझे मालूम हुआ कि मास्टर कॉर्ली असल में पाकिस्तान का फॉरेन एजेंट है। अली इमरान को अपना उस्ताद का दर्जा देता है। अली इमरान ने उसे बताया कि वो सॉकलैंड में एक मिशन पर आया है, जिसके लिए उसे मखसूस असला दरकार है। असले के साथ उसे अपने और अपने साथियों के लिए रिहाइश गाह की भी ज़रूरत थी और सफ़र के लिए कारें भी, जिसके लिए मास्टर कॉर्ली ने इमरान से फ़ौरन हामी भर ली थी कि वो उसे ना सिर्फ ये तमाम चीज़ें बहम पहुँचा देगा, बल्कि वो इसकी मिशन में भी काम भी करेगा। लेकिन इमरान ने सिर्फ उसे कह दिया था कि वो जिस मिशन पर आया है वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का मिशन है और इस मिशन को पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ही मुकम्मल करेगी। अगर उन्हें उसकी ज़रूरत हुई तो वो इससे भी काम ले लेंगे। कैप्टन स्कारुफ ने मार्शल हास्ट को तफसील बताते हुए कहा। और वो किस मिशन पर आए हैं? जहां मार्शल हास्ट ने होंठ चबाते हुए कहा। इमरान ने मास्टर कॉर्ली पर अपना मिशन ओपन नहीं किया था मार्शल, कैप्टन स्कारुफ ने कहा। इसका यहाँ आना काली अलत नहीं हो सकता। ये बताओ कि इमरान ने मास्टर कॉर्ली से किस किस्म का असला हासिल करने की बात की थी? मार्शल हास्ट ने कहा। तो कैप्टन स्कारुफ उसे असले की तफसील बताने लगा और इनका इरादा तो पूरे शहर को उड़ाने का मालूम होता है। असले की तफसील सुनकर मास्टर हास्टो ने होंठ भेज कर कहा, यस मार्शल, मास्टर कॉर्ली ने इसे शाम तक असले और इसके दूसरे काम करने का वादा किया। इमरान चला गया तो मास्टर कॉर्ली वापस अपने ऑफिस आ गया। उसने मुझे अपने चंद साथियों को साथ लिया और फिर हमने अंडरवर्ल्ड के असले डीलर से एक खास किस्म का असले हासिल किया। और फिर मास्टर कॉर्ली ने सारा सामान मेरे हवाले करते हुए कहा कि सामान मैं राज कॉलोनी की कोठी नंबर 210 में पहुंचा दूं। मैंने एक आदमी को साथ लिया और राज कॉलोनी पहुंच गया। हमने वहां सामान रखा और वापस आ गए। मास्टर कॉर्ली ने इमरान और उसके साथियों को डॉन लेक पर बुलाया था। वो 2 कारें इनके हवाले करेगा और वो सब इस कोठी में पहुंच जाएंगे। मुनासिब होगा कि आप फौरी कार्रवाई करें और राज कॉलोनी की कोठी नंबर 210 से असले हटाकर आप कोठी का मुहासरा करा लें। जैसे ही वो कोठी में दाखिल हो इन्हें छाप लिया जाए। कैप्टन स्कारुफ ने कहा। वो लोग बेहद चालाक और ज़हीन हैं। अगर मैंने कोठी का घेराव कराया तो इन्हें फौरन एहसास हो जाएगा और वो वहाँ से भाग जाएंगे। मैं खुद फोर्स लेकर वहां जाऊंगा। फिर जैसे ही वो कोठी में आएंगे हम इन्हें छाप लेंगे। मार्शल हास्ट ने कहा। ज़्यादा मुनासिब रहेगा मार्शल, कैप्टन स्कारुफ ने कहा। तो मास्टर कॉर्ली पर मुसलसल नजर रखो। जैसे ही वो लोग हमारी गिरफ्त में आएंगे तो मास्टर कॉर्ली पर भी हाथ डाल लेना। अगर मास्टर कॉर्ली पाकिस्तान एजेंट है तो फिर इसका भी इस तरह आज़ाद रहना खतरनाक हो सकता है। मार्शल हास्ट ने कहा। यस मार्शल, कैप्टन स्कारुफ ने कहा। मार्शल हास्ट ने इससे मजीद हदायत दी और फिर रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया। चलने में वो सोचता रहा, फिर उसने सुर्ख रंग के फ़ोन का रिसीवर उठाया और जल्दी जल्दी नंबर प्रेस करने लगा।
आर सेक्शन रब्ता कायम होते दूसरी तरफ से एक कर्रदार आवाज सुनाई दी। मार्शल स्पीकिंग। मार्शल हास्ट्रो ने कड़क लहजे में कहा। और यस मार्शल, मेजर रास्कोफ बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से फौरन मौदमाना लहजे में कहा गया। मेजर रास्कोफ, फौरन रेड फोर्स को तैयार करो। फोर्स की हर तरह से असले से लेस होना चाहिए। हमें फौरी तौर पर एक जगह रेड करना है। मार्शल हास्ट्रो ने तहमकाना लहजे में कहा। और यस मार्शल, मैं अभी फोर्स को तैयार करता हूँ। सॉरी मार्शल, लेकिन आप क्या बता सकते हैं कि हमें रेड करना कहाँ जाना है और किसके खिलाफ एक्शन करना है, ताकि मैं इसी लेवल की फोर्स तैयार कर सकूँ। दूसरे मेजर रास्कोफ ने मौदमाना लहजे में कहा तो मार्शल हास्ट्रो ने उसे राज कॉलोनी की कोठी नंबर और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में बता दिया। ओके सर, मैं फोर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। दूसरी तरफ से मेजर रास्कोफ ने कहा। ओके, और सुनो, तुम्हें सबसे पहले कोठी में दाखिल होकर वहाँ से असले हटाना है। कोठी में तुम आर डक्टा फोन लगा देना, ताकि जैसे ही वो कोठी में दाखिल हो तुम्हें इनकी आमद का इल्म हो जाए। जब वो कोठी में आ जाए तुम कोठी को चारों तरफ से घेर लेना। मेरे हेडक्वार्टर से राज कॉलोनी काफी फासले पर है। मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते 2 घंटे लग जाएंगे। मेरे पहुँचने तक अगर वो कोठी में आ जाए तो तुम इन सबका हर हाल में पकड़ लेना, और वो भी जिंदा। समझ के? तो मार्शल हास्ट्रो ने कहा। यस मार्शल, मैं समझ गया, मेजर रास्कोफ ने कहा। तो मार्शल हास्ट्रो ने मजीद हदायत देते हुए रिसीवर कैंडल पर रख दिया। आखिर इमरान अपनी टीम के साथ यहाँ किस लिए आया होगा? क्या मिशन हो सकता है इसका, जिसके लिए उसने मास्टर कॉलेज से इस कदर भारी असले हासिल किया है? रिसीवर रखने के बाद मार्शल हास्ट्रो ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। फिर जकलक उसके जहन में जमा का सा और वो बेइख्तियार उछल पड़ा। सिल्वर पावर। ओ मैं समझ गया। इमरान और इसके साथी यकीनन सिल्वर पावर हासिल करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। सिल्वर पावर हासिल करने के सिवा इनका यहाँ और क्या मकसद हो सकता है? मार्शल हास्ट्रो ने होंठ भेजते हुए कहा। मैंने सिल्वर पावर जैसा छुपा रखा है वहाँ उनका ख्याल भी पहुंच नहीं सकता। मार्शल हास्ट्रो ने कहा। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने इंटरकॉम रिसीवर उठा लिया और एक नंबर प्रेस कर दिया। यस मार्शल, दूसरी तरफ से उसका पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज ने दी। मेजर करसाफ से कहो कि वो मेरी तेज रफ्तार कार निकाले अभी। मार्शल हास्ट्रो ने कहा। यस मार्शल, दूसरी तरफ से सेक्रेटरी ने कहा मुअद्दबाना लहजे में। कुछ देर बाद एक बावर्दी नौजवान अंदर दाखिल हुआ और उसने मार्शल हास्ट्रो को फौजी अंदाज में सल्यूट किया। मार्शल, आपकी कार तैयार है, उसने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ठीक है, तो मेरे साथ चलो, हमें फौरी तौर पर रॉस कॉलोनी पहुंचना है। मार्शल हास्ट्रो ने उठते हुए कहा। यस मार्शल, आने वाले ने कहा। जो मेजर करसाफ था, चंद लम्हों बाद वो हेडक्वार्टर से निकलकर एक फोर्स लंडर कार में नहायत तेज रफ्तार से रॉस कॉलोनी की जानिब उड़ाए चले जा रहे थे। मेजर करसाफ ने नहायत तेज रफ्तार से कार चलाते हुए मार्शल हास्ट्रो को 2 घंटों से कम वक्त में राज कॉलोनी पहुंचा दिया था। काफी फासले पर उन्हें चंद फौजी गाड़ियां दिखाई दी जिनसे मुसल्लह फौजी उतर रहे थे। मेजर करसाफ कार इन फौजी जीपों के पास ले गया। जैसे ही मेजर करसाफ ने फौजी जीपों के पास कार रोकी, एक तरफ से एक भाई जिस्म वाला और कर्क चेहरे वाला उदेर उम्र तेज तेज चलता हुआ कार के पास आकर उसने मार्शल हास्ट्रो को सल्यूट किया और कार का दरवाजा खोल कर दिया और मार्शल हास्ट्रो कार से बाहर आ गया। क्या रिपोर्ट है? मार्शल हास्ट्रो ने उसे सामने मौजूद कोठी की तरफ देखते हुए कहा, जिस पर 210 नंबर लिखा हुआ था। इनकी तादाद 8 है। मार्शल, इन्हें शक था जिस कोठी में पहले से कोई मौजूद है। इन्होंने कोठी के एक एक हिस्से को छान मारा था, मगर मैं अपने साथियों के साथ दाएं बाएं मौजूद कोठी में छुपा हुआ था। जहां से वो रिहायशी हिस्से में दाखिल हुए थे, तब मैंने इस कोठी में अपने आदमी उतारे। इन्होंने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। मैंने अपने आदमी से कहा है कि वो दरवाजा तोड़ दें और जैसी हवा इन्हें जिंदा गिरफ्तार करें। आने वाला धेर उमर ने कहा, जो रेड सेक्शन का इंचार्ज मेजर रास्कोफ था। गुड, इनका सामान का क्या हुआ? मार्शल हास्ट्रो ने कहा। मैंने इनके आने से पहले इनका सामान उठवा लिया था। खतरनाक असला था, अगर वो असला इनके हाथ लग जाता वो यकीनन हमारे मुकाबले पर आ जाते। मेजर रास्कोफ ने कहा। ठीक है, आओ देखते हैं, मार्शल हास्ट्रो ने कहा। तो मेजर रास्कोफ ने इस बात में सर हिला दिया। मेजर करसाफ कार के पास ही रुक गया था, जबकि मार्शल हास्ट्रो मेजर रास्कोफ के साथ आगे बढ़ गया। इन्हें देखकर फौजी इन्हें सल्यूट कर रहे थे। कोठी का गेट खोल दिया गया था। कोठी में हर तरफ फौजी मुसल्लह अफराद मौजूद थे। मेजर रास्कोफ मार्शल हास्ट्रो की तरफ मुख्तलिफ रास्तों से लेता हुआ एक कमरे के दरवाजे के करीब आ गया। बेशुमार मुसल्लह फौजी ने इस कमरे को घेर रखा था। ये क्या हो रहा है? मार्शल हास्ट्रो ने आगे बढ़ते हुए कहा। मार्शल, आपका इंतजार कर रहे थे। मेजर रास्कोफ ने जल्दी से कहा। हूँ, बम मार कर इस दरवाजे को तोड़ दो। मार्शल हास्ट्रो ने लकड़ी के भारी दरवाजे को देखते हुए कहा। बम मारने से इनके हलाकत और जख्मी होने का इम्कान है। मार्शल, आपका हुक्म था कि इन्हें जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए। मेजर रास्कोफ ने जल्दी से कहा। वो जो मरता है मरने दो, इसे बम मारकर उड़ा दो इस दरवाजे को। मार्शल हास्ट्रो ने गुस्से लहजे में कहा। यस मार्शल, मार्शल रास्कोफ ने घबरा कर कहा। उसने फौरी तौर पर फौजियों के पीछे हटने का कहा। वो सब स्तूनों को आड़ में हो गए थे। एक फौजी ने एक हैंड ग्रेनेड की पेन निकाली और इस बम को दरवाजे से लगे एक हुक में फंसाकर तेजी से पीछे हट गया। मार्शल हास्ट्रो मेजर रास्कोफ ने भी फौरन स्तूनों की आड़ ले ली थी। फिर इस फौजी ने मशीन गन का रुख दरवाजे की तरफ करते हुए ट्रिगर दबा दिया। रेड रेड की मखसूस आवाज के साथ फिजा एक जोरदार धमाके से गूंज उठी। फौजी ने हैंड ग्रेनेड पर फायरिंग की थी, जिससे खौफनाक धमाके के साथ दरवाजा
दरवाजा और इसके इर्द गिर्द की दीवार गायब हो गई थी। वो वहाँ अच्छा खासा कला बन गया था। दीवारें मजबूत कंक्रीट की थी, इसलिए धमाके के बावजूद वहाँ से धूल नहीं उड़ी थी। जैसे दरवाजे की जगह कला बना, बेशुमार फौजी सतूनों की आड़ से निकले और इन्होंने कला के दाएं बाएं दीवारों से लगकर पोजीशनें संभाली। इमरान, तुम और तुम्हारे साथी हमारे निशाने पर हैं। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तुम सबके लिए यही बेहतर होगा कि खुद को हमारे हवाले कर दो। मार्शल हास्ट ने सतून की आड़ से कमरे की तरफ देखते हुए कहा, मगर अंदर से कोई जवाब सुनाई न दिया। मैं जानता हूँ तुम सब कमरे में ही मौजूद हो। कमरे से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हारे पास अगर किसी किस्म का असर है तो इसे बाहर फेंक दो और सिरों पर हाथ रखकर बाहर आ जाओ, वरना मैं कमरे में फायरिंग शुरू करा दूंगा। फिर तुम्हें से कोई जिंदा नहीं बच सकेगा। मार्शल हास्ट ने एक बार फिर चीखते हुए कहा, ओह, क्या इनके पास मजीद असला भी हो सकता है? मेजर राजकोफ ने मार्शल हास्ट से कहा, अहमक, वो गैर मुल्की एजेंट है। एजेंट खाली हाथ नहीं घूमते फिरते। इनके पास भारी असला ना सही, हल्का फुल्का असला यकीनन होगा। मार्शल हास्ट ने कहा तो मेजर राजकोफ ने इस बात में सर हिला दिया। कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। कला से सामने का हिस्सा तो दिखाई दे रहा था, लेकिन दाएं में दीवारों के साथ और कमरे में मौजूद भारी फर्नीचर के पीछे वो सब छुप सकते थे। तो मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मार्शल हास्ट ने कहा, लेकिन जवाब फिर भी न आया। मालूम होता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। ठीक है, मैं 5 तक गिनूंगा, इसके बाद मैं फायरिंग का हुक्म दे दूंगा। मार्शल हास्ट ने कोसिले लहजे में कहा, सुनो, अगर मैं 5 तक गिनने तक कोई बाहर ना आया तो तुम अंदर घुस जाना और जो नजर आए इसे उड़ा देना, वो मुसल्ला हो या गैर मुसल्ला। मार्शल हास्ट ने चीख कर अपने साथियों को हुक्म देते हुए कहा, 1 2 3। मार्शल हास्ट ने रुक रुक कर गिनती शुरू कर दी थी, मगर कमरे में बददस्तूर खामोशी थी। फौजी ने गनों की ट्रैकों पर हाथ पहले ही उंगलियां जमात ली दी थी। 4। मार्शल हास्ट ने कहा, मगर कमरे में बददस्तूर खामोशी छाई हुई थी, जैसे अंदर कोई मौजूद ना हो। 5। अटैक। मार्शल हास्ट ने चीखते हुए कहा। जैसे उसने अटैक कहा, दीवारों के साथ लगे फौजी तेजी से कला की तरफ बढ़े और इन्होंने अचानक कमरे में मशीन गनों से फायरिंग खोल दी थी। कमरा और माहौल मशीन गनों की तेज आवाजों से गूंज उठा था। इसी के साथ हम इख्तिताम करते हैं अपने नावल के दूसरे हिस्से का। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।